ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 1447 ہجری کے شوال شریف کی آج 9 تاریخ کی مناسبت سے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 9، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور عزیر بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ویسے ابھی آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ حالت اتنی خراب کیوں ہوئی ہوئی ہے؟ باہر کھیلنے گیا تھا، کیا مزہ آیا ہے یار، میں نے سب کے چھکے چھڑا دیے، کوئی بھی میرے آگے ٹک نہیں سکا۔ وہ تو صحیح ہے، لیکن آپ کے انداز کو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو آپ ایسے بات نہیں کرتے تھے۔ ابے یار کس زمانے میں جی رہا ہے، باہر نکلو، باہر لوگوں کو دیکھو، وہ ایسے ہی بات کرتے ہیں۔ لیکن بھائی لوگ اگر غلط کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی غلط کریں۔ ارے تم نہیں سمجھو گے، تم تو گھر پر ہی رہتے ہو، باہر نہیں نکلتے، باہر نکلو گے تو تمہیں میری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پیارا امیر اہل سنت، آپ کیا فرماتے ہیں؟ گلی محلے میں کھیلنے والے بچے گھر میں رہنے والے بچوں سے زیادہ ایکٹیو اور سمجھدار ہوتے ہیں۔ میرے بچے گلیوں میں نہیں کھیلے، ہم بھی نہیں کھیل لیتے تھے گلیوں میں۔ گلیوں کا ماحول عام بچوں کا رف، گالی گلوچ، بہت کچھ، مطلب یعنی کہ بہت سو تجربہ ہوگا کہ بہت عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے، مگر بچوں کو کنٹرول کرنا یہ ہے بہت مشکل ترین۔ لیکن ہمارے بچے الحمدللہ گلیوں میں نہیں کھیلے، گھر کے اندر۔ اب گھر کے اندر ایسی ان کو مطلب یعنی کہ پرووائڈ کی جائیں چیزیں، کھلونے وغیرہ، کہ وہ باہر نکلنے کی ان کو ہرس نہ ہو۔ شروع سے اگر اس کو کنٹرول کریں گے نا تو ہو جائیں گے، بعد میں نہیں ہوں گے۔ اب خیال رکھیں گے، آئندہ نہیں بھیجیں گے گلی میں۔ جب یہ گھر میں کچھ کنڈا کر دیں گے نا بچے تو بولے اب نہیں بھیجیں گے، اب تو یہ کیا بھیجیں گے، نہیں بھیجیں گے، آپ دروازہ توڑ کے نکل جائیں گے۔ وہ کہا جاتا ہے، درست ہے یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں، کہ ہاتھی کے بچے کو شروع سے ایک پتلی سی زنجیر میں پاؤں اس کا باندھ دیں آپ، تو وہ کھینچ کر کوشش کرے کہ توڑ نہیں پائے گا، بہت چھوٹا ہوگا نا، تو پھر اس کا ذہن بن جائے گا کہ یہ ٹوٹتی نہیں ہے۔ اب یہ بڑا ہاتھی بھی بن جائے گا نا، یہ زنجیر کو کھینچے گا نہیں، وہ ذہن بن جائے گا یہ ٹوٹی ہی نہیں۔ حالانکہ اب تو کیا خالی ہلکا سا جھٹکا بھی زنجیر کو توڑ دے گا، تو طاقتور ہوتا نہیں ہے۔ یہ کہا جاتا ہے، مطلب کنفرم کا نہیں پتا مجھے۔ تو اسی طرح بچے کو اگر شروع سے ہم کنٹرول کریں گے نا تو یہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے اس کا ہم فائدہ اٹھائیں۔ باقی کھیل کود سے تو بچے کو نہ روکا جائے، وہ تو اس کی اس فطرت میں ہے، کھیلتا کودتا تو ہے۔ اس کی ذرا عام طور پہ ضرورت بھی ہوتی ہے، یعنی کہ بچے کی ابھی گروتھ ہو رہی ہے تو اس کو ہل جل تو چاہیے۔ آپ نے شاید نوٹ نہ کیا، میں نے بہت نوٹ کیا ہے۔ اب آپ سمجھ جائیں گے، بچے جو ہے نا یہ چین سے بیٹھتے نہیں ہیں، ادھر ہاتھ چلائیں گے، کبھی کندھا ہلائیں گے، کبھی یوں کریں گے، یہ چلیں گے بھی تو پھدکتے ہوئے، اچھلتے ہوئے، کدکڑے لگاتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں بچے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو اس کی ضرورت ہے، ان کی گروتھ ہو رہی ہے، ان کے جوڑ وغیرہ یہ سب یہ ہلتے ہی رہتے ہیں، تو اس سے ان کو مضبوطی آئے گی اور یہ بہتر ہوں گے۔
تو اس طرح مطلب ان کے ہڈیاں وغیرہ مضبوط ہوں گی. اگر ایک ہی جگہ یہ پڑا رہے گا تو وہ بات نہیں ہوگی. جیسے کہ جو بھی جانور جو ہے نا، بکری ہو یا مرغی ہو، جو چھٹے چرتے ہیں نا اور ہر پھر کر اپنا کما کے کھاتے ہیں نا، تو ان کے گوشت میں، ان کے دودھ میں، ان کے انڈوں میں، اور جو بالکل بندھے بندھائے فارمی جن کو کہتے ہیں یہ ہوں گے، پکی پکائی جو کھاتے ہیں، اپنی محنت کی کمائی نہیں کھاتے، ان کے گوشت میں، ان کے دودھ میں فرق ہوگا. یہ جو بھی تجربہ کار لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، ان کو میری بات سمجھتے دیر نہیں لگے گی. تو اسی طرح مطلب بچے اگر گھر میں ماحول اچھا ہے تو اب گھر میں آپ اس کو بولو کہ میں گناہ بھر ٹی وی کے پاس بٹھا دوں اس کو اور یہ ڈانس دیکھتا رہے اور گانے سنتا رہے اور الٹے سیدھے ان کے مطلب ڈائلاگ سنتا رہے ایکٹروں کے، تو پھر تو وہ گھر ہو یا باہر ہو بچے میں فرق کیا آئے گا؟ بلکہ بگاڑ ہی بگاڑ ہے. تو ہے وہی چاروں طرف بگاڑ ہے. گھر میں نہیں بھی نکالو تو گھر کا ماحول کون سا اچھا ہے؟ گھر میں بات بات پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، میاں بیوی لڑ رہے ہیں، بھائی بہن لڑ رہے ہیں، اور تو کار، اور تب جو ہو رہا ہوتا ہے یہ بہت سارے غور کر رہے ہوں گے کہ یار تو ہمارے گھر کی بات کر رہا ہے. تو حالات ایسے ہی ہے. تو اس میں بچہ بھی تو یہی سیکھے گا نا. یہ تو بچہ جو نا، یہ لوہے سادہ لوح، آپ نے سنا ہوگا سادہ لوح، یعنی سادی تختی، کوری تختی، جس پہ کچھ پہلے تختیوں میں لکھتے تھے، اب شاید نہیں لکھتے بچے. پہلے تختی لکڑی کی ہوتی تھی، اس میں لکھتے تھے اور ملتانی مٹی سے اسے صاف کرتے تھے، یہ ہوتا تھا. اب ایسا شاید نہیں ہے. پھر سلیٹ آ گئی تھی، سلیٹ اس کا نعمل بدل، اب شاید سلیٹ بھی نہیں ہے، اب اور سسٹم نکل آئے. تو یہ سادہ لوح یعنی سادہ تختی، لوح تختی. تو سادہ تختی جو ہوتی ہے بالکل بلینک، خالی، جو لکھو آپ لکھ سکتے ہیں. اور پہلے سے جو لکھا ہوا ہو تو وہ جب تک مٹے گا نہیں تو آپ کچھ اس پہ لکھ نہیں سکتے. تو یہ بچہ سادہ لوح ہوتا ہے، تو اس پہ جو لکھا جائے وہ لکھ جائے گا. تو اس لیے وہ جیسی اس کی ہم تربیت کریں گے، جیسی اس کی عادت ڈالیں گے، تو یہ مطلب ویسی عادت اس کی پڑے گی. اور اگر ہم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی بڑا ہو کر اب ہمارے حال پہ چھوڑ دیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اگر ساتھ میں تھوڑا بچوں کو بھی کچھ آپ کے مدنی پھول مل جائے کہ بعض اوقات گھر میں سمجھاتے ہیں تو اب تھوڑا جنریشن کا یہ جو بات ہوتا ہے کہ وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور جوان ہاتھی کو زنجیر باندھو گے تو کبھی بھی نہیں سمجھے گا، اللہ جھٹکا مار کے توڑ دے گا. تو میں نے کیا کہ شروع سے ہی کنٹرول میں ہو، اور ایسا اب ہو نہیں رہا، اپنے اختیارات میں نہیں ہے. لیکن میں نے اپنی مثال دی، ہمارے بچے گلیوں میں نہیں کھیلے. گلیوں کا ماحول مجھے پتا کہ جو ہماری گلی کا ماحول تھا جب ہم جہاں رہتے تھے، بچے میرے چھوٹے تھے. تو اب یہ کہ بچوں کو اگر بچے ہی سمجھدار ہو جائے تو ماں باپ کی ضرورت کیسے پڑے ان کو؟ تو یہ ماں باپ کو پالیں گے. ابھی ماں باپ ان کو پال رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بچے سمجھدار نہیں ہوتے. تو یہ کیا سمجھیں گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام مقصود احمد اتاری ہے اور میرا تعلق اکاڑا سے ہے. بچوں کے سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات آپ عطا فرماتے ہیں، وہ بہت خوبصورت انداز ہوتا ہے. تو کیا ہمیں بھی یہ انداز سیکھنے کا موقع حاصل ہو سکتا ہے اور کس انداز میں ہوگا؟ چلو یہ بھی ایک سوال ہے. تو بچوں کے سامنے بولتے ہیں نا بچہ بننا پڑتا ہے. تو بچوں کو ہم یہ فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کریں گے ان کے سامنے، تو ان کے پلے کیا پڑے گا؟ ان کو ان کی زبان میں، ان کے اسٹائل میں اگر سمجھائیں گے، ان کے انداز میں، تو جلدی ان کو سمجھ پڑے گی. انڈرسٹوڈ ہے، مطلب بچوں کے سامنے بچوں کے انداز میں ہی، گھر میں بھی بات ماں باپ وغیرہ ان کے انداز میں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بچوں کے انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے سامنے. یہ ان کو یہ انداز جمتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نگران شورا بھی ایک موضوع پر توجہ دلا رہے ہیں کہ ایک اور بھی پرابلم حضور یہ ہے کہ موبائل دے کر بچوں کو بٹھا دیتے ہیں اور پھر وہ چیک بھی نہیں کیا جاتا کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں. یعنی ہوتا نہیں، وجہ فرمایا. یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اب تو بس وہ ماں کے پیٹ سے نکلا اور
जिससे हाथ जो है ना इसका मोबाइल पे पड़ेगा, यूँ समझ लो। अब इसको खिलाना है तो पिलाना है तो जो भी करना है, इसके हाथ में मोबाइल होगा तो ये खाना खाएगा, समझे, जो कुछ मतलब अब तो बस मोबाइल ही मोबाइल है। और ये घर घर की कहानी है, शायद ही कोई घर इससे बचा हुआ हो। बहुत हालात है ऐसे। अब मतलब यानी ये हम जैसे बोलेंगे इसके वो साइड इफेक्ट बताएंगे तो माँ बाप का जहन बनेगा भी, अब देर बहुत हो जाती है ना, फिर बच्चा थोड़ी छोड़ेगा मोबाइल, तो खाएगा ही नहीं, जिद करेगा, मोबाइल चाहिए उसको। शुरू से ही अगर, मगर अब एक बच्चा मोबाइल से है रिलेटेड, अब दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो भी आंख खोलते इसकी नजर तो मोबाइल को देखेगी ना। तो अब ये क्या है कि अब इसको कैसे हम बचा के रखेंगे इस बच्चे को। तो मोबाइल ने तो बिल्कुल वो तबाही के दहाने पर लाके खड़ा कर दिया। क्या बच्चे क्या बड़े, अब बड़े भी एक तादाद है जो मतलब घर में रहती है और मोबाइल में मसरूफ रहती होगी, घंटों रहती होगी और मोबाइल में मसरूफ। इसी तरह बच्चे अगर अब बाहर अगर खेलने से रोकेंगे तो घर में मोबाइल, तो ये मोबाइल पर गेम खेलेंगे ज्यादा। अब ज्यादा कम, अब किसमें ज्यादा तबाही है कम तबाही है वो तो अल्लाह बेहतर जाने, वरना एक बुरी सोहबत से बचाने की ताकीद तो बहुत है कि बुरी सोहबत बुरा फल लाती है। बाहर सोहबतें जनरली बुरी है, हर गली में गलत माहौल हो, ये ज़रा मैं हतमी बात नहीं कर सकता, लेकिन कोई अच्छी ऐसी गली देखी हो कि जिसका माहौल अच्छा है तो मुझे पता दे देना उसका, कि वहाँ के बच्चे ना गाली निकालते हैं, ना बदतमीज़ी करते हैं, ना अड़ाउड़ी करते हैं, ना अबे तबे हो ये करते हैं। ऐसा कोई शोरफा का मोहल्ला आपने देखा हो तो मुझे बताना, उसकी खाक मंगवा कर शायद मैं अपने पास रखूँ तो मेरी आदतें सही हो जाए, मैं नेक बन जाऊँ। ये आपको समझाने के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हालात ऐसे ही है और आप भी समझते होंगे कौन सा मोहल्ला कौन सी गली ऐसी है। आपका बच्चा दुरुस्त है, आपके बराबर वाले का बच्चा भी दुरुस्त है, इसके बराबर वाले के बच्चे का क्या पता चले ये कैसा है। जरा जहाँ ये पढ़ने जाते हैं वहाँ भी माहौल, तालीमी इदारों में भी जो रंग रंग के नस्ल नस्ल के बच्चे होते हैं। आपका बच्चा भले ना, मतलब यानी कि आपके घर में टीवी ही नहीं है, बाद ऐसे घराने हैं मदनी चैनल के लिए भी टीवी नहीं रखते, ऐसे भी हैं मतलब कि नहीं रखते कि ये होगा तो फिर गुनाह भरा चैनल को खोल देगा, तो चाहिए ही नहीं हमको। तो ये भी जब पढ़ने के लिए जाएगा ना कहीं किसी इदारे में, वहाँ ये सब ये सुनता रहेगा, एक से एक फिल्मी डायलॉग सुनेगा, डांस के तस्करे वो करेंगे, खुद वो डांस करके दिखाएंगे जो इसके साथ पढ़ने वाले हों, और गालियाँ इसको सिखाएंगे, खुद देंगे तो बच्चा सीखेगा। तरह तरह की बातें बच्चे बाहर सीख कर आते हैं। सही बात है, हैरत होती है कि ये इसको कैसे आ गया। ये मतलब हर जगह का मामला, अब वो मजहबी तालीमी इदारा हो या दुनियावी तालीमी इदारा हो, कुछ ना कुछ माइनस तो हैं सब जगह, साइड इफेक्ट सबके हैं। लेकिन ज़रा दीनी इदारा फिर भी बहुत फ़ायदा है, इसमें बहुत फ़ायदे हैं। लेकिन मतलब ये चीज़, इससे आप बोलो कि मैं बच जाऊं, मेरा बच्चा महफूज रह जाए, ये मुमकिन नहीं है। हालात ऐसे हैं। अब अल्लाह बचा ले किसी बच्चे में, अल्लाह पाक कोई सी खूबी रख दे और आगे चलकर वो कोई बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हो दीनी हवाले से, और वो माइनस जो है वो उस पर असर ना करें, वो एक अलग बात है, मनफी असरात उसमें ना हो। तो ये एक अशादुकल मादूम कि अल्लाह जिसको चाहे और उसको बचा ले तो वो अलग बात है, वरना बज़ाहिर मतलब माहौल जो है ना वो हर तरफ मतलब दुनिया देखी भाली है। जाए तो जाए कहाँ, मदीने। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلی حضرت کا، طیبہ سے رکھتا ہے نسبت قبہ اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت کا، پیارے اعلی حضرت کا۔ میرا نام احمد رضا ہے۔ My name is Ahmed Raza. I am from Canada. میرا نام سید احمد رضا اتاری ہے۔ احمد رضا from Malawi. احمد رضا I'm from Malawi. میرا نام احمد رضا ہے۔ احمد رضا۔ میرا نام احمد رضا ہے۔ 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 My name is Ahmed Raza. My name is محمد احمد رضا اتاری۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ یہ آج احمد رضا نام کیوں آ رہا ہے پتا ہے کسی کو؟ سب کو نہیں پتا، کچھ کو پتا ہے کچھ کو نہیں پتا۔ کچھ عادات اٹھا رہے ہیں کہ شاید عرس آ رہا ہے اعلیٰ حضرت کا، عرس آ رہا ہے نا، اعلیٰ حضرت کا عرس شریف آ رہا ہے نا، ہاں عرس شریف آ رہا ہے۔ بعض ہاتھ تو اٹھا نا عرس شریف کے لیے، مکس ہے معاملہ کہ کچھ ہے ضرور جب بھی احمد رضا نام آج دکھائے گئے، کیونکہ مولا علی کی نسبت سے حضرت علی کے نام کا میں نے عرض کیا تھا نا کہ 21 چاہیے، تو الحمدللہ 21 سے زیادہ آ گئے۔ تو اب یہ کہ پہلے سے ہی ماشاءاللہ ہمارا مدنی چینل ایکٹیو ہو گیا لگتا ہے، احمد رضا منگوا دیے انہوں نے۔ جو بھی نام دیتا ہوں نا اس میں عام طور پر رضا تو شامل ہی ہوتا ہے۔ آپ امین رضا ہیں، ان مانو کر مطلب آپ کا میلاد رضا ہے، آپ کا حسن رضا ہے نا آپ کے پاس، تو رضا رمضان رضا، تو اس طرح مطلب یہ کہ رضا کی بہاریں ہیں چاروں طرف الحمدللہ۔ جس کا کھانا اسی کا گانا، ہم نے رضا کا کھایا ہے تو یہ نکل رہا ہے، گیت گا رہے ہیں ان کے۔ مزہ تو اب یہ ہے، اس میں تھوڑا لطف آتا ہے۔ اب آئندہ زندہ بخیر رہے تو رمضان میں رمضان رضا آئیں گے انشاءاللہ اسکرین پر۔ میں زندہ نہ بھی رہوں تو رمضان رضا کے نام آنے چاہیے، یہ اب یہ بھی توجہ گئی میری، تو یہ بھی تھوڑا ایک لطف آتا ہے، سرور آتا ہے۔ احمد رضا کیا بات ہے تیری، احمد رضا کیا بات ہے تیری، احمد رضا کیا بات ہے تیری، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کیا بات ہے تیری۔ سبحان اللہ۔ اچھا وہ تو وہ احمد رضا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، یہ بتا رہے تھے ماشاء اللہ۔ 10 شوال شریف میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت ہے، برتھ ڈے، اور آج 9ویں رات ہے نا، تو کل ہوگی 10ویں شب، کل شب ولادت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی۔ خائف کبریا ہے رضا، ہے رضا عاشق مصطفیٰ، ہے رضا، ہے رضا سنیوں کے پیشوا، ہے رضا، ہے رضا رہبر و رہنما، ہے رضا، ہے رضا صوفی باصفا، ہے رضا، ہے رضا صاحب اتقا، ہے رضا، ہے رضا خوب رو خوش ادا، ہے رضا، ہے رضا دل برو دل ربا، ہے رضا، ہے رضا عاشق اولیاء، ہے رضا، ہے رضا زینت اتقیا، ہے رضا، ہے رضا عالم بعمل، ہے رضا، ہے رضا مفتی بے بدل، ہے رضا، ہے رضا عاشق مصطفیٰ، ہے رضا، ہے رضا ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. سوال ہے یہاں پر، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بیٹا بار بار عمرے کے لیے جائے، حتیٰ کہ شادی کے بعد بیوی کو بھی ساتھ لے جائے، لیکن ماں اس کی اس پہ ناراض ہے اور روکتی بھی ہے، تو اس صورت میں کیا اس بیٹے کا یوں جانا درست ہوگا؟ اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ جس کا بلاوا ہوتا ہے وہی جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دونوں کا جواب عطا کر. ماں روکنے کا سبب کیا ہے؟ ماں روکتی کیوں، یہ سبب دیکھا جائے گا نا. بیٹے پر یہ واجب تو ہے نہیں کہ ماں کو عمرے پر لے جائے، ٹھیک ہے نا. اچھا، نہ اپنی بیوی کو لے جائے، یہ بھی واجب نہیں ہے. ماں کو دعائیں دے کر رخصت کرنا چاہیے. سمجھ میں یہ آتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عمرے پر روانہ ہو رہے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ بھائی ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا. فاروق اعظم تو اس جملے کا لطف اٹھاتے تھے کہ مجھے بہت مزہ آیا، یاد رکھا کہ مجھے یوں فرمایا سرکار نے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو ماں باپ ان پر ہمارے، ماں باپ ان پر قربان. جیسے ظاہر ہے کہ ہمارے سب کچھ ہے. تو کوئی بھی اگر جاتا ہے، میرے بچے بھی جاتے ہیں، میں یہیں ہوتا ہوں، تو میں تو کبھی ناراض نہیں ہوتا ان سے. تو آخر ناراض ہونے کی وجہ کیا؟ مطلب بعض اوقات یہ کہ اس میں حسد بھی کار فرما ہوتی ہوگی. یہ جب دیکھو بس اب میری بہو کو لے جاتا، اپنی بیوی کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو زن مرید ہو گیا ہے. زن مرید ایک اصطلاح ہے. زن مانے عورت کا مرید ہو گیا اپنی، اسی کی سنتا ہے. تو یہ بعض اوقات اس میں جیلسی کام کر رہی ہوتی ہے. یا نندیں جو ہوتی ہیں اس کی، ساس کی اپنی ذاتی بیٹیاں، کہ بھائی جو ہے نا ابھی جب سے شادی ہوئے نا اسی کی سنتا ہے، ہماری نہیں سنتا. گھروں کے ماحول اس طرح بھی، سب کے نہیں لیکن اس طرح بھی ہوتے ہیں جو بہت برے ماحول ہوتے ہیں. غیبتیں، تہمتیں اس میں چل رہی ہوتی ہیں اور گناہ دلیری کے ساتھ کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ جب عمرے کے لیے جائے تو ماں باپ سے اجازت لے کر جائے، ماں باپ حیات ہیں تو، اور ماں باپ روکیں تو رک جائے، ہے نا. اجازت جب ہی ہے نا کہ ماں باپ روکیں تو رک جائے. اور بلاوے والا جو سوال تھا اس پر بھی یہ بلاوا ہے کہ مطلب محاورتاً لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں بلاوا آیا ہے سرکار کا. تو یہ کہ اللہ نے دل میں ڈالی بات، یہ مقدر میں تھا تو پہنچ گئے. اس کو بلاوا ہمارے یہاں ایک معروف لفظ ہے، بلاوا آیا ہے. بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو بھی بولیں گے بلاوا آیا. بغداد شریف گئے تو غوث پاک کا بلاوا آیا. یہ ہمارے یہاں یہ جملہ بولا جاتا ہے. مدینے گئے تو بلاوا آیا، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. اصل میں بلاوا تو مشیت پر ہوتا ہے، یعنی بعضوں کو جو بلاوا ہوتا ہے وہ رضا کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی بلاوا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ رضا بھی ہے. جیسے مسجد کے اندر حاضر ہونا، جی اب مسجد میں جو حاضر ہوا اس کو بلاوا ہی آیا، کنفرم نہیں ہے یعنی بلاوا اس مقصد کے لیے آیا. یعنی ممکن ہے کہ بلاوا تو آیا لیکن اس میں رضا ہو یہ لازم نہیں ہے. اس میں اللہ کی رضا ہو یہ راضی نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. صحیح کہ نماز صحیح پڑھے گا نہیں پڑھے گا، یا نماز کے لیے آیا ہے یا جوتے چرانے کے لیے آیا ہے. آیا تو مسجد میں، تو اب اس کو اللہ پاک نے بلایا یہ کہتا بھی نہیں ہے کوئی ایسے لوگوں کو. لیکن یہ ایک جنرل ایک محاورہ ہے مطلب کہ بلاوا آیا ہے. اور جب تک مطلب جو کام مطلب اللہ نہیں چاہتا اس وقت تک کوئی قدم بھی نہیں اٹھا سکتا. جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ پاک کے چاہے سے، اللہ پاک کے کیے سے، اس کی دی ہوئی طاقت، قدرت، اختیار سے بندہ کرتا ہے. یعنی جملہ کہنے میں حرج نہیں ہے کہ ہوتا اللہ اور اس کے رسول کی مشیت کی وجہ سے ہی ہے. جی مشیت یعنی ان کے چاہے سے ہوتا ہے. لیکن بس یہی ہے کہ جیسے بعض علماء سے یہ ہے ان کے بارے میں کہ یوں کہتے ہیں کہ جیسے خواب میں بعض اوقات دیدار مانگا جاتا ہے کہ ہمیں دیدار نصیب ہو، تو وہ یوں ساتھ دعا کرتے ہیں کہ رضا کے ساتھ دیدار ہو. یعنی دیدار تو ہو گیا لیکن ممکن ہے کہ دیدار جس کیفیت کے اندر ہوا ہو وہ نہ ہو کہ جو بندے کے لیے دوسرا انداز ہو. تو اس لیے ساتھ ساتھ اس کے اندر رضا بھی ہو.
اب کعبے میں جا رہے ہیں، مدینے جا رہے ہیں، پیسہ حرام کا ہے، دیگر چیزیں ہیں، سب کچھ ہے، تو اب بلاوا ان معنوں میں ہے کہ مشیت ہے، یعنی انہوں نے اجازت دی تو ہو رہا ہے ایسا، ان کے چاہنے سے ایسا ہو رہا ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ جو جا رہے ہیں اس میں رضا بھی حاصل ہو جائے. تو ہمیشہ یوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، عافیت والی. مجھے یاد پڑتا ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں اپنے مکتوب میں شاید فرمایا ہے، کہیں میں نے ایسا یاد پڑھا ہے کہ مدینے میں موت بدفن، اس میں بھی خیر کا لفظ استعمال کیا ہے، خیر. ورنہ جو مسجد نبوی شریف ہے نا، آپ میں شاید سب کو پتہ نہ ہو، مسجد نبوی شریف کی جو زمین ہے جب یہ لی گئی وہاں مشرکین کی قبریں تھیں. مسجد نبوی تو یہ وہاں ان کی قبروں کو مٹا کر اس پر مسجد بنائی گئی، مسجد نبوی شریف. تو مسجد مدینے میں مرنا ہر صورت میں خیر نہیں ہے کہ کفر پر وہ تو مرے تھے، قبروں کو ہی تہس نہس کر دیا گیا. جو مومن صاحب ایمان دنیا سے جائے تو اس کا مدینے میں مرنا یہ ہے، یعنی یہ مشروط ہے. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہے مگر خاتمے پر. خاتمہ کیسا ہوا؟ تو جو مدینہ شریف میں فوت ہوا مسلمان ہے، ہم اس کو مسلمان ہی کہیں گے، اس کی شک نہیں کریں گے، لیکن یہ خاتمہ اس کا کیسا ہوا ہمارے پاس کوئی اس کی مشین نہیں ہے جاننے کی، لیکن ہم 100% مسلمان کہیں گے کہ وہ ہمارے نزدیک بھی مسلمان ہے، عند اللہ بھی مسلمان ہی ہم اس کو مانیں گے. اللہ کے نزدیک بھی اس کو ہم مسلمان ہی کہیں گے، کہ جو اللہ کے نزدیک مسلمان نہیں ہے پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہے نا. تو ہم لوگ جو ہے نا، جیسے شریعت ظاہر پر ہے تو ہم جو ظاہر ہے اسی کی بات کریں گے اور فائنل بات اسی کی کریں گے، لیکن اب وہ آگے چل کر کیا اس کا معاملہ ہے وہ ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ کہ یوں بلاوا، اب لوگ یوں بس باتیں کرتے ہیں کہ اس کی روزی ایسی ہے تو وہ ایسا ہے تو فلاں ہے، قرضہ چڑھا ہوا ہے، قرضے ادا نہیں کرتا، جب دیکھو مدینے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. سمجھے؟ اس کو قرضہ ادا کرنا چاہیے. واقعی میں بھی کہوں گا قرضہ ہی ادا کرنا چاہیے اس کو، کہ اگر وہ قرض داروں کو منع کر جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ یہ کہ یہ ظاہر ہے کہ برائیوں اور غیبتوں کا دروازہ کھول کر جا رہا ہے مدینے، کہ لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور قرضہ جلدی دینا بھی ضروری ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ پھر بھی بلاوا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہو سکتا. اس کا جاتے رہنا ہی اس کی یہ نیک بن جائے، سدھر جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. ورنہ تو ایک مسجد میں بھی نہیں جانا چاہیے، کہیں بھی نہیں جانا چاہیے اس کو، جو مطلب ہے کہ وہ اچھا آدمی نہ ہو. تو برے آدمی مسجد میں تو آتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، جمعے کی پڑھتے ہیں، بعد عید کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرہ امیر سندار برکات العالیہ کے آفیشیل فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل مولانا الیاس قادری پر بھی دیکھا جا رہا ہے. سیدی یہ سوال موصول ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ عید کے حوالے سے بچوں کی عیدی کافی اچھی خاصی جمع ہو گئی ہے، کیا والدین اس عیدی کو گھریلو ضروریات میں استعمال کر سکتے ہیں؟ نابالغ اب محتاجی نہیں ہے تو محتاجی میں استعمال کریں گے، قرض کی طرف. اگر ماں باپ محتاج ہیں، انہیں ضرورت مند ہیں، ایسے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اب وہ ایسی ضرورت پڑ گئی ہے، تو وہ بطور قرض، اصل تو والد ہوتا ہے اس میں، تو والد بطور قرض لے لے یا اس کی ماں کو بھی بطور قرض دے دے، اس میں سے یہ صورت بنے گی اور پھر یہ ادا کرنے ہوں گے. نابالغ بچوں کے مال میں تصرف کرنا، اپنے اختیارات استعمال کرنا، یہ جائز نہیں ہے. بچوں کے مسائل بہت پیچیدہ اور باریک ہیں، اور اس میں ابتلاء عام جیسا ہی ہے. عام طور پہ اس کو کیئر نہیں کیا جاتا. بچے کی عیدی ملی، بچے کو کسی نے خرچی دی تو وہ ماں باپ نے قبضہ کر لیا، نابالغ بچہ ہے، یہ نہیں کر سکتے. جو بھی نابالغ بچے کی ملک میں جو مال ہے نا وہ اسی کا ہے. ہاں اس کو جمع کر کے رکھ سکتے ہیں کہ بڑا ہوگا دے دیں گے، یا اسی پر خرچ کریں بچے پر. اس ناسمجھ بچہ ہے تو اس کو عیدی ملی تو وہ رکھ لی اور اسی بچے پر خرچ کیا ہے نا، تو صورت یہ جائز ہے.
दूध में, इसकी दवा में, इसको कोई खिलौना ला दिया उसको जिसकी इसको ज़रूरत है बच्चे को खेलने की, या उसके लिबास जिसको ज़रूरत है लिबास की इसको, तो ये उसमें ये पैसे नाबालिग के खर्च कर दे, करना चाहे तो, वरना जमा करके रखे। बालिग हो और इस काबिल हो कि संभाल लेगा तो अब इसके हवाले कर दे, वरना अब ये खुद बोल दे कि अगर चाहे तो कि माँ तुम रख लो, बाप तुम रख लो, तो वो अलग बात है, फिर रख सकेंगे। बच्चे के लिए जो चीज़ खरीदी ना, खरीदते वक्त बड़ा प्रॉब्लम है। बच्चे के लिए बाप ने या सरपरस्त ने बच्चे की नीयत से जो चीज़ खरीदी, इसका मालिक का बाप नहीं रहेगा, बच्चा हो जाएगा। ये बड़ा बारीक मसला है, इसमें बड़ा इब्तिला है। अब बच्चे के खिलौने दूसरे को उठा के दे दिए, या बच्चे के कपड़े अब इसको पूरे नहीं हो रहे, छोटे पड़ गए, दूसरे भाई बहन को पहना दिए, ये होता है। तो ये नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं तो आज से नहीं, बरसों से मशवरा देता आ रहा हूँ कि आप जो भी खरीदें ना, आप बच्चे की नीयत से नहीं खरीदें कि ये बेबी के लिए, तो ये बाबू के लिए, तो ये बाबा के लिए, नहीं। ये मतलब अपने लिए आप खरीदें। अब जब आप अपने लिए खरीदेंगे ना, तो अब हर बच्चा इस्तेमाल कर सकता है। जो रिश्तेदार का आया बच्चा तो वो भी इस्तेमाल करे, पड़ोसी का भी, मुबाह सबके लिए हो जाएगा। मालिक आप होंगे इसके। तो ये जो भी चीज़ खरीदे ना बच्चों के लिए, तो ये एहतियात अगर हो जाए ना तो मक्का मदीना हो जाए कि आप अपनी नीयत से खरीदें। बाप, और बाप नहीं तो सरपरस्त, ये उसका मसला है। माँ के लिए ये मसला नहीं है, क्योंकि ये सरपरस्त नहीं है। सरपरस्त की बारी आती है इसकी, लेकिन बाद में आती है। पहले तो बाप है, बाप फौत हो गया या ना रहा तो दादा है, तो इस तरह फिर भाई, चचा, तो यूँ कैटेगरी है, नहीं मतलब वो एक सिलसिला है, जंजीर है। तो माँ की भी इसमें बारी आती है, वो देर से आती है सरपरस्ती में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा मीडिया सुनने से ये सवाल है कि चंदा कम देना था मगर गल्फ फैमिली से ज़्यादा दे दिया। मिसाल 50 रुपये देने से 1000 रुपये का नोट डाल दिया, अब चंदे बॉक्स से वापस निकाल सकते हैं। जवाब इरशाद फरमा दीजिए और मेरे घर वालों के लिए दुआ फरमा दीजिए। पुलिस नहीं भी हुए तो बंदे पकड़ लेंगे, आप हाथ डाल के निकालोगे ना तो वो चोर समझकर हो सकता है कुछ का कुछ कर डालें। ये तो वैसे ही मतलब एहतियात की बात है कि डालिएगा, मैं यार हाथ मत डालना। अब मसला तो मुफ्ती साहब से पूछते हैं। हुक्म तो यही होगा जो आपने फरमाया कि इसको मना ही किया जाएगा, क्योंकि ये मुतलकन इजाज़त दे दी जाए तो फिर कुछ से कुछ हो जाएगा। बाज़ जो अहकाम है वो इस तरह के हैं, जब तक वो इसकी मिल्क से निकला नहीं है उस वक्त तक इसे इख्तियार होता है। ख़र्च नहीं हुआ अभी तक, उसमें नीयतों के एतबारात होते हैं, लेकिन इस तरह बहरहाल इजाज़त होगी नहीं। हाँ बिल्कुल, जैसे जेब से निकाला और अभी डालने लगा तो अब उसको नज़र आ गया कि ये 1000 का डाल रहा हूँ, अब वो हटा के 50 डाल देता तो फिर अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन डाल दिया तो फिर बात सूरत ये होंगी कि वो मिल्क हो जाएगा, मस्जिद की मिल्क हो गया या मदरसे की मिल्क हो गया, या जो जहाँ दिया जा रहा है उनके वकील ने कब्ज़ा कर लिया तो अब वापसी नहीं ले सकेगा। वो मना ही किया जाएगा कि इस तरह दे दिया तो फिर वापस न ले। ये बॉक्स में कब्ज़ा करने की सलाहियत है। अब बॉक्स फिर अलग चीज़ हो जाएगी, बॉक्स फिर एक अलग चीज़ हो जाएगी। बॉक्स में चंदा बॉक्स में डालते हैं ना, बाज़ वो चोली फिराते हैं, जोली भी फिराते हैं, किसी की हाथ में भी दे देते हैं, मिल्क दे कर देते हैं। उन्होंने सिर्फ मिसाल दी है, तो मुमकिन है कि कोई और सूरत हो। और बॉक्स में डाला तो बॉक्स में तो इसे निकाल भी नहीं सकेगा। निकालेगा तो पुलिस आते आएगी, बंदे ही पकड़ लेंगे, कानून खुद ही नाफिज भी कर देंगे, कोई भरोसा नहीं है। तोड़ फोड़ डालेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। 1000 रुपये से ज़्यादा खर्चा मलम पट्टी में लग जाएगा और तकलीफ अलग होगी। बड़ा दिल रखकर, मतलब ये मशवरा है, मसला अपनी जगह पर है कि बॉक्स में डाला तो मिल्क पर बाकी रहेगा उसकी ये, लेकिन अब निकालेंगे तो हाँ, अब ऐसा है कि मुतवल्ली या जो भी इसके इंतज़ामिया हैं उसको बात करेंगे, वो भी आप पर एतमाद करेंगे या नहीं करेंगे। मसला ये ना कि 1000 रुपये का नोट इसमें से ही है, डाला, किसी को डालते हुए देख लिया होगा तो
बोले कि मेरा है, ये लो 50 रुपये देता हूँ, 50 डालने थे, 950 का नफ़ा कर ले। तो सारे वो भरोसा करें तो ना। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम हामिद रज़ा अत्तारी है और मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है, ऑनलाइन बिजनेस में वीडियोस या ऐड चलाए जाते हैं, तो जो सामान बेचा जाता है वो वीडियोस और ऐड के मुताबिक बंदे को नहीं मिलता, तो उस बिजनेस के बारे में रहनुमाई इरशाद फरमा दें कि क्या वो बै फासिद है या उस बै में कोई शरई मसला तो नहीं है, तो ये हमारी रहनुमाई इरशाद फरमा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अगर वो चीज़ उसकी डिमांड के मुताबिक नहीं है जो उसे दिखाई गई थी, वैसे भी जो चीज़ उसे दी गई, तो शरीयत मुतहरा यहाँ पर एक ख़ियार देती है, यानी इख्तियार देती है, जिसको ख़ियार रूयत कहते हैं। यानी कोई चीज़ किसी ने ख़रीदी, अभी उसने देखी नहीं है, तो देखने के बाद फिर उसे इख्तियार होता है कि वो इनकार कर सकता है कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। बिलखुसूस यहाँ पर जो कंडीशन है वो तो बिल्कुल वाज़ेह है कि एक चीज़ वीडियो में या तस्वीर की सूरत में दिखाई थी कि ये चीज़ है और इतने की है और ये इसके अंदर जो है वो खूबियाँ मौजूद हैं, खुसूसियात मौजूद हैं। अब जब पहुँची तो वो चीज़ उसके मुताबिक थी नहीं, तो उसे बिल्कुल इख्तियार है कि उसे वापस करेगा और अपनी रकम वापस लेगा उससे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम अत्तारी है। मेरा ताल्लुक लावरपिंडी से है। अमीर अहले सुन्नत आज मेरे सालगिरह है और मैं 7 साल का हो गया हूँ। मैं नियत करता हूँ आज से मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। इस्तकामत की दुआ कर दीजिए। और मेरा सुन्नत आज से मुझे ये सवाल है कि हम बच्चों को अपनी सालगिरह कैसे मनानी चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, आपको आपकी सालगिरह मुबारक हो। और आपने तो कैसे मनानी चाहिए, एक मदनी फूल तो दे दिया ना कि 7 साल 7वीं सालगिरह हो, 7 साल पूरे हो गए तो नमाज पढ़े, है ना। ये सरपरस्त के लिए है वाजिब कि इसको नमाज का हुक्म करे, नमाज पढ़ो। अब अगर कभी नमाज छूट गई उसकी तो कज़ा का हुक्म नहीं देंगे, क्योंकि इस पर अभी फ़र्ज़ नहीं हुई है, लेकिन अभी आदत डलवाने के लिए इस पर ये शुरू हुआ है कि अब इसको ये जैसी आती है ये पढ़े और साथ में इसको सिखाना जारी रखे। फिर 10 साल का हो जाए तो ताकीद, अब वो बहुत ज़्यादा ताकीद है कि अब इसको मतलब पढ़ाइए नमाज बच्चे को। यही मसला रोज़े का है। अगर 7 साल का हुआ तो रोज़ा रखने की ताकत है तो उसको सारे रोज़े रखवाए, और जितने वरना वाकई कमज़ोर है तो जितने रख सकता है उसको रखवाए, और 10 साल में ज़्यादा ताकीद है। अब इसमें क्या होता है कि 7 साल के बच्चे बच्चियां तो नज़र आते रहते हैं, रोज़े नहीं रखते। ये माँ बाप का पता नहीं, माँ बाप इसमें इंटरेस्टेड कम होता है, अलग मसला बाप का है, बाप रखवाए, वाजिब बाप पर है। तो अब ये कि माँ बोलती है कमज़ोर है, तो अब मैं मतलब क्या कह सकता हूँ, औरत की बात ऐसी बातें मान ली जाती है। मसला है, गुनाहगार आप होंगे अगर रखने की ताकत है तो रखे। बच्चे बात रखते हैं माशाअल्लाह, लेकिन एक तादाद है 7 साल के बच्चे रोज़े पूरे नहीं रखते, भारी तादाद है। बच्चे बच्चियाँ पूरे रूम को रखवाए नहीं जाते। बच्चे बाद शौकीन होते हैं रखने के रोज़े, लेकिन उसको रखवाए नहीं जाते। तो कमज़ोर है तो बीमार पड़ जाएगा, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। फिर वो तालीमी मसरूफियात, स्कूल्स वगैरह बंद नहीं होती, ये भी एक रुकावट बनती है, लेकिन शरई तौर पर ये रुकावट मानी नहीं जाती। रोज़ा रखना होगा, जबकि ताकत है उसमें, उसको रखवाना होगा, चाहे स्कूल की छुट्टी हो जाए। स्कूल पढ़ना तो रमज़ान में पढ़ना तो वाजिब ही तो नहीं है ना कि पढ़े ही पढ़े। स्कूल उतना सबक वो ऑनलाइन भी पढ़ सकता है। अब तो बहुत सारी सहूलतें हैं, रात में तरकीब बन जाए ऑनलाइन पढ़ने की, और उसकी जो खाना जो खाली है वो पूरा हो जाएगा। मगर खैर वो इंतज़ामिया इसको मानेगी नहीं मानेगी वो सारे के अपनी जगह पर है, लेकिन मैं तो हुक्म शरई बता सकता हूँ, शरीयत का हुक्म कि इसको नमाज भी पढ़ाएं, रोज़े भी रखवाएं, वरना गुनाहगार होंगे।
जिन्होंने ऐसा नहीं किया, अपने बच्चों को रोज़े नहीं रखवाए, खाली वहमात की वजह से कि कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर बहुत है, खाता नहीं है, ये आम शिकायतें माओं को होती हैं, खाता नहीं है, खाता नहीं है, चिप्स खा रहा है, टाफियाँ खा रहा है, खट्टी मीठी गोलियाँ खा रहा है, लॉलीपॉप चूसते चला जा रहा है, ये खा तो रहा ही है। ये बंद कर दो तो आपकी रोटी खाएगा, आपकी बिरयानी खाएगा, आपके चावल खाएगा, वो बंद कर दो तो मानता नहीं है, तो फिर गिले शिकवे छोड़ दो और अच्छे डॉक्टर से रब्ता भी रखो। ये कब ये लुढ़कनी खाता है तो उठा के ले जाना पड़ेगा ना। अरे टाफियाँ खाएगा, चॉकलेट खाएगा, गोलियाँ खाएगा, खट्टी मीठी, और खाना नहीं खाएगा तो डॉक्टर की रोज़ी तो खुलेगी ना। अच्छा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट नज़र में होना चाहिए फिर आपकी, कि कब ले जाना पड़े इसको। ये चोट करने के लिए कह रहा हूँ, बदुआ नहीं दे रहा, आपको झटका दे रहा हूँ कि मेहरबानी करें, अपने बच्चों को शुरू से इससे बचाने की कोशिश करें इन चीज़ों से। अब मुश्किल ही है कि कोई तोहफा भी देते ना अजीज रिश्तेदार दोस्त, तो भी टाफियाँ और चॉकलेट ही टिकाते, कुछ मिलता ही नहीं है, तो ये तोहफे में आ रहा होता है, खुद नहीं खरीदो तो अभी तोहफे में आ गया, अभी खाएगा। बच्चे को तो बच्चे क्या, आपको कई बड़े मिलेंगे, आपको बड़े बड़े मिलेंगे जो आपको कोको चॉकलेट खाते हुए मिलेंगे, छुपा छुपा के खाएंगे आपसे, महंगा होता है ना। चॉकलेट खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं, बिस्कुट अच्छी चीज़ नहीं है, मैं सही बोलता हूँ आपको, बिस्कुट अच्छी चीज़ नहीं है। ये बिस्कुट बहुत धड़ल्ले से खाया जा रहा है, चिप्स एक से एक चिप्स खाए जा रहे हैं। आपके बच्चों को कभी बोलते भी होंगे, ज़बान में जलन होती है, दिखाते होंगे तो छाला नज़र आता होगा, ये चिप्स, पेट की गर्मी, ये कचरे खा कर पेट की गर्मी निकलती है। छाले मैंने देखे, इसलिए बोलता हूँ, बच्चों के छाले पड़ते हैं, फिर वो खाना नहीं खा सकते। और ये छाला आगे चलकर अगर इसका इलाज ना किया गया तो ये कैंसर भी बन सकता है। तो ये मगर परवाह ही नहीं है, रोज़ मतलब यानी कि कैंसर के मरीज हमारे सामने आते जाते हैं, परवाह ही नहीं है। जो पान खोर है तो पान खाया जा रहा है, गुटखा खोर है तो गुटखे से मतलब बाज नहीं आता, वो मतलब जो होना होगा यार, जो सबका होता है अपना होता है, अपना होगा। लेकिन अब एक कांटा भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते यार, नज़ले की छींक आए तो बर्दाश्त नहीं होती, तो यार कैंसर की तकलीफ और ये तकलीफ़ें कैसे बर्दाश्त होंगी। तो मेहरबानी करें, अपने हाल पर रहम फरमाएं। और ये चीज़ें पान गुटखे सिगरेट सब ख़तरनाक चीज़ें हैं, इनको तर्क करें। गोली चॉकलेट वगैरह बच्चों को अगर मुमकिन हो आपके लिए तो रोकें, नहीं मानते तो कम से कम इनके पेट में जाए इसकी कोशिश करें। और आहिस्ता आहिस्ता इस नीयत से कि छोड़ा दें इनको। बच्चे मानते नहीं है, जिद करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर जब डॉक्टर नहीं मानेगा ना कि अब मैं नहीं बचा सकता, तो फिर आप फिर क्या करेंगे आप? डॉक्टर बचाएगा कैसे? डॉक्टर के हाथ में है क्या? कड़वी दवाएं और नोकदार सुई, ज़ाहिर उसके हाथ में कोई शिफा थोड़ी है, शिफा तो अल्लाह देगा। तो बहरहाल ये क्या, कोशिश फरमाए अपने बच्चों को, हम बस समझो और गौर करो। ये कोशिश किसने करनी है, माँ ने करनी है या बाप ने करनी ये है? असल ये माँ के हाथ में होता है। बच्चा ज़्यादातर माँ से मानूस, बाप काम धंधा करता है, कमा के लाता है, समझे, माँ उसको खिला खिला कर दवाओं के खर्चे का बिल बाप के लिए तैयार करवाती है। यानी करीब ये डॉक्टर की खिदमत में हाजिर की जाएगी, नज़र पेश की जाएगी, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लो। लेकिन डॉक्टर साहब बोलेंगे बहुत देर हो गई है, खैर आप इतने जमा करवा दो, मैं कोशिश करता हूँ, शायद ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब आप अच्छे लगेंगे। तो किसी की मान लिया करो। ये मौलाना वो क्या समझ पड़े, ये भी सही है, इनको कुछ ना समझ पड़े, जब भी तो मतलब ये ऐसी हमको नसीहतें कर रहे होते हैं, समझ आपको सब पड़ती है। तो आप जैसी समझ अल्लाह किसी मौलाना को ना दे, और मौलानाओं की समझ आप सबको अता करें, तो इंशाअल्लाह माशरा हमारा सही हो जाएगा। हम तंदुरुस्त होंगे तो मस्जिदें आबाद होंगी, नमाज़ें पढ़ेंगे, नफल रोज़े रखेंगे, फ़र्ज़ रोज़े रखेंगे, और नेकी की दावत की धूमें मचाएंगे। तंदुरुस्त होंगे तो करेंगे, बीमार पड़े होंगे तो क्या करेंगे? कुरान हिफ्ज़ करेंगे, बच्चे हमारे आलिम दीन बनेंगे,
ہمارے وطن کا بھی نام روشن ہوگا, ہمارے مذہب کا نام بھی, اسلام کا نام بھی روشن ہوگا. سب تندرست ہوں گے تو ہوگا نا, بیمار پڑے ہوں گے تو کیا ہوگا. بچے ہر وقت ٹھاؤں لگا ہوتا ہے, کھانستے رہتے ہیں, چھینکتے رہتے ہیں, ناک بہ رہی ہے تو بخار چڑھا ہوا ہے. عام طور پہ بچوں کو یہ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن ماں باپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہم خرید کر بچے کو بیماریاں دے رہے ہیں. کبھی ٹافی کے نام پر, کبھی چاکلیٹ کے نام پر, یہ بیماریاں ہیں. کریم والے بسکٹ کھلا رہے ہیں اس کو. بغیر کریم کے بھی بسکٹ جو ہے نا, یہ نہیں سمجھ میں نہیں آتے. مطلب اس کے نقصانات پڑھے ہیں میں نے, صحیح نہیں ہے. مطلب بسکٹ, آپ روٹی کھائیں گھر کی, گوڑ روٹی کھائیں. چاول بھی جس کو چلتے ہوں وہ کھائیں. چاول سب کو نہیں چلتے. جن کا بلغمی مزاج ہوتا ہے نا, ان کو بار بار نزلہ ہو جاتا ہے, چاول اس کو چلتے نہیں ہے. تجربہ میرا اپنا بھی ہے, چاول میں بھی اب بہت کم کر چکا میں, نہیں چلتے. مطلب کبھی تھوڑے بہت کھا لیے تو وہ چل جاتے ہیں, روز کھائیں تو بھی نہیں چلتے. کچھ روٹی کھا لی, کچھ چاول کھا لیے, اس طرح طبیعت فریش, نزلے کھانسی وغیرہ سے بھی کافی حد تک امن رہتا ہے. پیریڈ بڑھ جائے گا آپ کا نزلے کھانسی کا اگر ہو رہا ہے نا. بعض بیچارے سمجھتے ہیں ہم کو دائمی نزلہ ہے. اب دائمی چاول کو چھوڑ دیں کھانا, آپ دیکھو آپ کا دائمی نزلہ کہاں گیا. ورنہ یہ ڈاکٹر پیسے لیتے رہیں گے آپ سے. حکیم صاحب آپ کو معجون کھلاتے رہیں گے کڑوے. اچھا معجون میٹھا ہوتا ہے, ہاں شہد ڈالتے ہیں یا پھر چینی کا قوام ڈالتے ہوں گے. کوئی شہد ڈالتا ہوگا, قوام ڈالتا ہوگا چینی کا, کھلاتے رہیں گے, پیسے لیتے رہیں گے. ہاں بھائی یہ ڈبہ 1 مہینہ چلے گا آپ کو, کتنی بھائی 15,000 روپے. چاکلیٹ کا خرچہ الگ, چاول کا خرچہ الگ, اور ڈاکٹر کا خرچہ الگ, حکیم صاحب کا خرچہ الگ. یہ کرتے رہیں, جیتے رہیں, چھینکتے رہیں, کھانستے رہیں. تو بس میری باتیں اگر سمجھو گے تو اللہ کرے گا تو فائدے پھر ہوگے. ڈاکٹر صاحب بھی منع کرتے ہوتے ہیں, حکیم صاحبان بھی منع کرتے ہوں گے کہ یہ مت کھاؤ وہ مت, یہ بولتے ہیں. لیکن ہم لوگ مطلب یعنی کہ مانتے نہیں ہیں. ہاں بولتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے, وعدہ خلافیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا واقعہ غالباً, آنکھیں آئی تھیں آپ کی آنکھیں, اور آنکھوں میں تکلیف ہو گئی تھی کچھ. وہ ہماری آنکھوں میں جیسے کیچڑ ہو جاتا ہے نا, تو آنکھیں آئی تھی آپ کی. یہ آئیں بولتے ہیں اس کو, آنکھیں آنا, یعنی آنکھوں میں مرض آ جاتا ہے, تکلیف آ جاتی ہے. تو یہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے. تو آپ کو کسی نے سے آپ کیوں نہیں کرتے؟ مطلب اصل وہ ڈاکٹر طبیب نے مجھے کہا کہ آنکھوں کو ہاتھ نہیں لگانا, تو میں ہاں بول چکا ہوں کہ میں نہیں لگاؤں. ٹھیک ہے, تو میں کیسے وعدہ خلافی کروں؟ یہ ان کا تقویٰ تو دیکھیں یار. ہم تو ڈاکٹر بولتا ہے یہ مت کھاؤ وہ مت کھاؤ, یہ ڈاکٹر صاحب, پھر وہ مسکرا کر یار ڈاکٹر تو بولتے رہتے ہیں, کیا عادت ہے یار. وہ ڈاکٹر بھی بولتا ہو تو کھاتا رہے, میرے پاس آتا رہے, میری روزی اسی پر ہے. ایک بار کا واقعہ ہے, میں کان کے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, وہ کافی سال پہلے. تو ڈاکٹر نے بولا تھا وہ روئی لگا ہوا تنکا ہوتا ہے, ایسے کان کھجاتے نا, یہ کان میں نہیں ڈالنا. تو اب میں ہاں کیسے بولوں, تجھے ڈالنے کو دل کرے. تو میں نے وہ, ڈاکٹر صاحب بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں, مولانا کچھ نہیں جانتے. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ تو کان میں ڈالتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے. ہاں, میں نے ڈاکٹر صاحب کو گھما دیا, سمجھے. میں نے وعدہ نہیں کیا کہ میں نہیں ڈالوں گا. تو ڈاکٹر صاحب بولے کھٹا مت کھانا, بالکل یہ نہیں کہنا چاہیے. تو اب بولے کھٹا نہیں کھانا. اچھا, تو کھٹا نقصان کرتا ہے؟ ہاں نقصان کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب دوبارہ شاید نہیں بولیں کہ کھٹا مت کھانا. تو پھر بولے کہ وہ کھٹا, تو کیا وہ تھوڑا کھٹا بھی نہیں کھانا ہوتا اس میں؟ تو بولے ہاں تھوڑا کھٹا بھی. تو پھر یہ ایسی باتیں ہیں جو میں نے اس میں, جھوٹ نہیں بنے گا اس میں. لیکن اس وقت ڈاکٹر کا روب اتنا ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں سوجھیں کیسے.
तुम्हारा अगर बोल तो नहीं खाऊंगा तो फिर ठीक है मत खाओ। वो दही का क्या करोगे? दही में खटास तो होता ही है। वो दही सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इम्यून सिस्टम जो है, मुदाफ़ियती निज़ाम ये बढ़ाती है। और भी फ़वाइद हैं दही के, मैदे के लिए भी मुफीद है। हर चीज़ मतलब लिमिट के अंदर खाई जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नींबू खट्टा है, बहुत फ़ायदे हैं इसके नींबू के। तो जिसको नहीं चलता वो फिर बचे इससे, या कम मिकदार में इस्तेमाल करे जितना उसको चलता है। घर में अब बिरयानी पकी, अब इसमें खटास तो है। अब डॉक्टर ने बोला खटास नहीं खाना, आपने बोला डॉक्टर साहब हाथ भी नहीं लगाऊंगा खटास। आप थोड़ा बाज़ वक़्त ज़्यादा बोलता है ना आदमी, तो यूँ भी बोल दे। अब वो करेगा क्या? घर में बिरयानी पकी है, अम्मी क्या बगैर उसके आपके लिए पकाएगी? सबका जायका ख़राब करेगी। तो मम्मी मैं डॉक्टर साहब को बोल चुका हूँ, तो इसमें क्या होता है? डॉक्टर तो बोलते रहते खा खा बेटा कुछ नहीं होता। तो नफ्स भी तो बोलेगा यार कुछ नहीं होता, खाओ यार। तो इसलिए डॉक्टर को वादा ना किया जाए, तबीब को, हकीम को। ये बहुत ख्याल रखने की बहुत बारीक बात है, इससे बचना बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर तो मोहतात होने से रहे कि बोलें कि आपके लिए ये नुकसान दे, ये नुकसान दे, ये नुकसान दे। वो तो ये बोलेंगे ये मत खाना, हाँ देखो ये भी मत खाना, तो हाँ नहीं खाऊंगा। फिर जवाब में ये होगा तो फंस जाएंगे। हकीम और डॉक्टरों को भी मशवरा है, ये सुनते होंगे तो वो भी अपने मरीजों को बेचारे गुनाह में पड़ें, झूठ मूठ आपको कहें। इसके बदले अगर ये हो ना कि ये चीज़ नुकसान दे आपके लिए, ये चीज़ आपके लिए नुकसान दे, ये चीज़ आपके लिए नुकसान दे, यूँ बता दें आप ये मत खाओ, ये ना कहो कि बेचारा हाँ बोले और फंसे, तो फिर वादा खिलाफी या झूठ की नौबत नहीं आएगी। इतने हकीम और डॉक्टर जब समझदार हो जाएंगे तो माशरा बिल्कुल हमारा मदीने की तरफ परवास कर जाएगा। ऐसे डॉक्टर भी होते हैं, खुदा तरस डॉक्टर होंगे, खौफ खुदा वाले डॉक्टर मिलेंगे जो मेरी ये बातें सुनकर या इससे पहले ही ऐसा करते होंगे या सुनकर अब इसको अमल में लाएंगे कि यार बात तो ये सही कहता है। मरीज़ बचते तो है नहीं, खाते ही हैं। मना करो लाख मतलब ये वादा करते हैं, फिर भी वही खाते हैं, फिर आगे खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए इनको हम गुनाह से बचाएं कि ये हाँ ना कहलवाएं इनसे कि ये चीज़ नुकसान दे आपके लिए, इससे बचना। ये बचना कहोगे तो फिर वो हाँ बोलेगा तो फिर फंस जाएगा। ये चीज़ आपके लिए नुकसान दे, इससे बचना अच्छा है। तो अब हाँ कहेगा ना बचना अच्छा है, तो वो वादा खिलाफी नहीं होगी ना, बचना अच्छा है, बचूंगा ये नहीं हुआ ना एतराफ़। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाल्लाह अभी शुरू में जैसे अहमद रज़ा नाम के हवाले से बात चली थी, तो सिर्फ कराची मदरसतुल मदीना में हुजूर 2247 बच्चे जो है वो अहमद रज़ा नाम के। क्या बात है, माशाअल्लाह। और इसी तरह हमारे इटली के जो निगरान हैं उन्होंने कहा कि यौम पैदाइश 10 शव्वाल पर इटली में 3 दिन के मदनी काफ़िले जो है वो आला हज़रत के ईसाल सवाब की नीयत से सफ़र कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। इटली से करें और पाकिस्तान से ना करें। अब ये आप फरमा दें। जी बिल्कुल करने चाहिए। याद रज़ा, क्या बात है। में काफिला, याद रज़ा में काफिला। और अगर इसमें भी कारोबारी, दुकानदारी, नौकरी के मसाइल तो आड़े आते हैं, तो अगर चलो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की याद में आने वाला जुमा जो है, जुम्मा हफ्ता इतवार इंशाअल्लाह, हाँ, इसमें काफिले सफ़र कर लें। सफ़र तो करते हैं लेकिन मज़ीद आला हज़रत की मोहब्बत में जो इस्लामी भाई अगर कर लें तो ख़ास मतलब रज़ा, याद रज़ा में काफिला इंशाअल्लाह, जुम्मा हफ्ता इतवार। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुबा इस्लाह अमाल की तरफ से बड़ा खूबसूरत ऐलान है हुजूर कि 30 मार्च बरोज़ पीर यानी ये सहरी इज्तिमात कर रहे हैं यौम रज़ा के हवाले से आला हज़रत के ईसाल सवाब के लिए। हमारे शुबा इस्लाह अमाल का जैसे आपने भी शुरू में रोज़ा रखने की जो तरगीब इरशाद फरमाई, तो माशाल्लाह सहरी इज्तिमात भी इन्होंने तरकीब बनाई है। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। माह अप्रैल 2026 माह हफ्तावार इज्तिमा के तौर पर मनाया जाएगा।
कर के तय किया है, पाकिस्तान में भी और बैरून पाकिस्तान में भी, इस्लामी भाई भी, इस्लामी बहनें भी। और हफ्तावार इज्तिमा वो दीनी काम है अल्हम्दुलिल्लाह जो दावत इस्लामी का अव्वलीन दीनी काम है। आगाज़ में गुलजार हबीब कराची में इज्तिमा हुआ करता था और फिर बढ़ते हुए सिंध, पंजाब, पाकिस्तान और दुनिया भर के सैकड़ों हज़ारों शहरों में दावत इस्लामी का इज्तिमा शुरू हो गया। और माशाल्लाह इस इज्तिमा में शिरकत की बरकत से कितने लोगों के अकायद दुरुस्त हुए, कितने लोगों के आमाल दुरुस्त हुए। और हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करने की बरकत से ज़िम्मेदारान की इनफरादी कोशिश से आशिकान रसूल काफ़िलों में भी सफ़र करते हैं, माशाल्लाह मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ भी करते हैं, उनकी ज़ाहिर व बातिन की इस्लाह भी होती है और इनफरादी कोशिश के ज़रिए से फिर 12 दीनी कामों में भी शामिल हो जाते हैं अल्लाह की रहमत से। और दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में तिलावत होती है सूरह मुल्क, जो कि अल्लाह की रहमत से अज़ाब क़ब्र से बचाने वाली और रब की बारगाह में बख्शिश करवाने वाली सूरत है। उसके बाद नाज शरीफ पढ़ी जाती है, पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो नाज शरीफ ये इश्क रसूल पैदा करती है और जो सुन्नतों भरे बयानात होते हैं ये तो झंझोड़ कर रख देते हैं, फ़िक्र आखरत दिलाते हैं, ज़ाहिर व बातिन की इस्लाह होती है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब ज़िक्रुल्लाह होता है तो दिलों का जंग दूर होता है और रिक्कत अंगेज़ दुआओं के अंदर तो ऐसा खौफ खुदा तारी होता है बाज़ पर कि वहाँ आंसू बह रहे होते हैं और गुनाहों से सच्ची तौबा हो रही होती है। फिर सलातो सलाम का भी सिलसिला होता है, मदनी हल्के लगते हैं तो दुआएं भी याद करते हैं, सुन्नतें भी सीखते हैं। रात फिर आशिकान रसूल ठहरते हैं, नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं और फिर अल्हम्दुलिल्लाह दुआए तहज्जुद का सिलसिला, फजर की नमाज बाजमात, इशराक, चाश तक ये सिलसिला चलता है और सलातो सलाम पर मुकम्मल होता है। तो माह अप्रैल 2026 माह इज्तिमा, इज्तिमा में आना है, दूसरों को भी लाना है। इज्तिमा में आना है, दूसरों को लाना है। इज्तिमा में आना है, दूसरों को भी लाना है। अब लाने के लिए इनफरादी कोशिश करनी होगी, उनको दावत देनी होगी। लाने के लिए अल्लाह पाक रहमत फरमाए अपने यूसी से गाड़ियाँ चलानी होंगी और जो हमारे शोबे वाले हैं मदरसतुल मदीना बालिगान वाले वो मुदर्रिसीन दावत दें। फिर शोबे तालीम वाले अपने तालीम इदारों से, यूनिवर्सिटी से गाड़ियों वगैरह की तराकीब करें। तो हफ्तावार इज्तिमा में आशिकान रसूल आएंगे और ख़ूब इंशाअल्लाह दुनिया आखरत की बरकतें पाएंगे। अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है कि हमारी ज़ाती इस्लाह और तरबियत के लिहाज से हफ्तावार इज्तिमा की क्या अहमियत है, कुछ इस ताल्लुक़ से हमारी रहनुमाई फरमाएँ और कुछ दुआ भी इरशाद फरमा दें उन आशिकान रसूल के लिए जो हफ्तावार इज्तिमा में आएँ और दूसरों को लाएँ। माशाअल्लाह। वह लंगर वगैरह नहीं खिलाया जाता, वह बात स्पेशली कोई तरकीब होती होगी थोड़े बहुत की, वरना जनरली लंगर नहीं खिलाया जाता। खैर पहले तो और ही अंदाज होता था हमारा, आहिस्ता आहिस्ता माशाअल्लाह काम बहुत बढ़ गया। तो एक वक्त था जब हमने इज्तिमा शुरू किया ना, तो मिन्नतें करके किसी को तैयार किया था कि यहाँ ये बर्गर बेचे, बन कबाब वगैरह, ताकि लोग आते हैं बेचारे दूर दूर से ख़रीद कर खाएं। वो दौर याद कर रहा हूँ, सारा खाना मिलता नहीं था और मैं ये कहता था मैं चंदा करके इज्तिमा में खाना नहीं खाने दूंगा, मैं नहीं करूंगा। पहले मैं अपनी, जब मैं मतलब सिक्योरिटी इशू नहीं था, नया नया काम था, तो बस मेरे जहन में बैठा था कि मैं खाना खिलाने के लिए बुलाऊंगा ना, आओ तुमको खाना भी खिलाएंगे, तो फिर ये बोलेंगे कि देखो खाने का लालच देकर ये लोग जमा किए जा रहे हैं, तो खाना अपना अपना खाएंगे और इज्तिमा में आएंगे अल्लाह के लिए, खाने के लिए नहीं आएंगे। खैर तो आहिस्ता आहिस्ता फिर तो खैर वो गाड़ियाँ, ठेले और जो काम बढ़ा ना, तो खुद ही एक को तैयार किया था और वो भी शायद उसको भी लॉस हो गया। आता था इतनी पब्लिक थी लेकिन सब नहीं खरीद के खाते ना, तो वो बेचारा बर्गर वाला नहीं बल्कि शायद पतीला भर के लाता था कुछ सालन रोटी वगैरह, तो वो भी भाग गया दुनिया। अब ज़ाहिर आमदनी तो चाहिए ना, तो यूँ मतलब यानी कि शुरू में थोड़ा यतीमी जैसा माहौल था, सिर्फ गुलजार भी इज्तिमा हम लोग करते थे।
फिर आहिस्ता 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 अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने जो अभी आपको बताया गया कि ये काम बहुत बढ़ गया। तो ये दावत इस्लामी का यूँ 12 दीनी कामों में पहला काम, अव्वलीन माने पहला काम ये है। अव्वलीन में भी हो सकता है कुछ लोग नहीं समझते होंगे, तो पहला काम 12 दीनी काम में ये है। खैर इससे पहले तो हमने ग्राउंड बनाया था, मगर उसको एक बाकायदा काम नहीं कहा जाएगा कि वो तो कर लिया हमने कि मुख्तलिफ मस्जिदों में मैं जाता था, बयान करता था, तरकीब बना करके मैं फ़लाँ मस्जिद में आऊँगा। तो पहले तरकीब बनानी पड़ती थी, अचानक चले जाने से तो ज़ाहिर कोई करने नहीं देगा बयान। लेकिन फिर भी एका दुक्का ऐसा हुआ था कि मैं तरकीब बना कर गया और फिर भी मुझे निकाल दिया था, नहीं करने देते थे बयान। तो चलो खैर अल्लाह का करम है। शुरू में तो है ना कि बोलते ना घर की खिचड़ी खानी पड़ती है। तो इस तरह करते करते गुलजार हबीब हमने कोशिश की और गुलजार हबीब में पहला इज्तिमा शुरू किया। इसमें भी मेरा कुछ ऐसा मसला हो गया, फिज़िकली मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ा। तो जो जुमेरात हमने इज्तिमा की तय की थी तो वो नहीं हो सका, 1 महीने का गैप आ गया। गैप यूँ आया कि फिर मैंने बोला कि अब यार पहली बार इतनी भागदौड़ करके दावत इस्लामी और इज्तिमा पहला इसकी हिस्ट्री का, और ये नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, ये टेंशन अलग, बीमारी अपनी जगह। बोले मैं तो करके दिखा, इज्तिमा करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। तो 1 महीने के बाद से ही खैर तो फिर मसाजिद में ऐलान करवा, सोशल मीडिया तो था नहीं, ऐलानात करा दिए कि ये इज्तिमा जो था, मैं कहा तारीख भी पहले नोट तय कर लूँ मैं और तारीख दे दूँ कि अब फलां तारीख को इज्तिमा था, इसके बजाय फलां तारीख जुमेरात को गुलजार हबीब में इज्तिमा होगा। ये ऐलानात करवा दिए। और फिर जो जुमेरात इज्तिमा वाली थी मैंने एहतियातन कुछ इस्लामी भाई खड़े कर दिए, दोस्त बिरादर इस्लामी भाई की इस्तिला नहीं थी, अपने कुछ दोस्तों को खड़ा कर दिया कि यार भले हमने ऐलानात करवा दिए मस्जिदों में, लेकिन ये हो सकता है कि कुछ ना कुछ आ जाए। तो वाकई कुछ ना कुछ आए जुमेरात को इज्तिमा में, इनको पता नहीं चला था। तो इनको फिर समझा बुझा करके फलां तारीख को इस तरह ये फिर 1 महीने के बाद वाकई वो अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा करने में हम कामयाब हो गए, तबीयत संभल गई और धूम पड़ गई। वो पहला इज्तिमा, ना उस वक्त ये वीडियो थे, ना कोई कैसेट बनाने का कोई शौर, कुछ भी नहीं, धूम पड़ गई अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर कभी भी जब से ये काम हमारा शुरू हुआ 1 सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटा। दावत इस्लामी ये काम अल्हम्दुलिल्लाह आगे से आगे आगे से आगे बढ़ता चला गया। यहाँ तो कर्फ्यू हो जाते थे, ऐसे हालात पैदा होते थे, कर्फ्यू होते थे, इज्तिमा हमारा होता था। मुझे याद नहीं पड़ता, कर्फ्यू की वजह से मार्शल्ला भी था, वो भी दौर गुजरा, तो उसमें भी वो इज्तिमा हमारा फौजी भी नहीं रोकते थे हमको। इनकी समझ में आ गया था कि यार ये लोग तो पीसफुल लोग हैं, अब इनको क्या बंदूकें दिखानी थी कि जाओ घर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना पुलिस हमको रोकती थी, ना मुसाइद हालात में जगह जगह मेरे बयानात भी हुए हैं, लेकिन पुलिस भी समझती थी कि ये वो लोग नहीं हैं जिनसे हमको वतन को बचाना है, ये तो हमारे मुहाफिज लोग हैं, हमारे वतन को के लोगों को से क्राइम दूर करने वाले लोग हैं, हमको तो क्राइम को रोकना है ना। तो यूँ माशाअल्लाह मक्का मदीना, तो इस तरह हमने 144 में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बयानात किए अल्लाह की रहमत से। तो यूँ मतलब ये कि दावत इस्लामी आगे से आगे निकलती गई। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी मुल्की हालात की वजह से कभी जुमेरात का इज्तिमा, गैदरिंग तो कम हुई है ये तो पता है, लेकिन ये कि इज्तिमा हमने कैंसिल किया मुझे याद नहीं आ रहा। हुआ हो तो हो सकता है हुआ हो, लेकिन फ़िलहाल याद नहीं आ रहा। हमने ऐसा मतलब कि भाई करना, और मैं नागा करता नहीं था, मैं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बराबर फ्रैक्चर हो गया, पाँव में प्लस्तर था, उसमें भी मुझे उठा कर ला के गुलजार भी में रखा था इस्लाम भाई ने, मैं छुट्टी नहीं करूँगा। तो बहरहाल ये तमीद मैंने बांधी। तो ये इज्तिमा कितनी मशक्क़तों से, मेहनतों से, कोशिशों से शुरू किया गया, और अब आप हैं कि आने वाले बन जाए, पाबंदी से आने वाले बन जाएं कि बस वो आना ही आना, यानी जुमेरात को कुछ भी मतलब काम। अब मेरे बच्चे भी बहुत छोटे, और मतलब मैं अपने ख़ानदान जो था ना, ससुराल वगैरह, दावतें, शादियां, मैं कहीं भी इनमें नहीं जाता था, और मेरी मसरूफ़ें थी नहीं उस वक्त, आप लोग तो थे नहीं,
समझे, दावत इस्लामी का काम करने वाले। तो मैं नहीं जाता था कहीं भी, इनकी दावतों वगैरह में कोई इक्का दुक्का गया तो गया, नहीं जाता था। और इनका भी जहन बन गया था, पता था इनको कि ये दीन के काम में मसरूफ़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी लड़ाई झगड़ा इन्होंने नहीं किया हमसे, आना पड़ेगा आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे भी अच्छा ख़ानदान मिल गया कि मेरी बात इनकी समझ में आ गई। और कई इस ख़ानदान के कई अफराद अल्हम्दुलिल्लाह अत्तारी भी हो गए अल्लाह की रहमत से। तो मक्का मदीना हो गया और अपना दावत इस्लामी का काम बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और आज यानी मेरी औलाद, रूहानी औलाद जवान हो गई, दुकानें खोल के बैठ गई है और मैं बैठे बैठे खा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यानी खा रहा हूँ, ये मतलब मुहावरतन बोल रहा हूँ कि अब मतलब माशाअल्लाह मेरे बच्चे जवान हो गए और इतना सुन्नतों का काम कर रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं। अब तो जामियातुल मदीना, तो मदारिसुल मदीना कोई तसव्वुर शुरू में नहीं था, बस वो काम को काम सिखाता है। अब तो उलमा प्रोडक्शन, मुफ्तियान किराम का प्रोडक्शन, हाफिज़ प्रोडक्शन, हज़ारों हज़ार हाफिज़ बन गए, फिर मुबल्लिगीन हज़ारों लाखों तैयार हो गए। इस्लामी बहनों के काम का उस वक्त कोई तसव्वुर नहीं था, इनमें भी काम शुरू हुआ। और माशाअल्लाह अब तो फैसला करना मुश्किल है कि दावत इस्लामी में इस्लामी भाई ज़्यादा हैं या इस्लामी बहनें ज़्यादा हैं। हम दिखाते नहीं हैं स्क्रीन पर इनको। तो यूँ अल्लाह की रहमत से वो बड़ा, पहले तो लोग मुझ पर शक करते थे कि पता नहीं है कौन ये, वाकई बोलता हूँ बड़ा शक करते थे, ये कहाँ से टपक पड़ा, कैसे आ गया ये। लेकिन आहिस्ता 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 सबकी समझ में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सब मेरे रब का करम है कि अब दावत इस्लामी किसी तारुफ की मोहताज न रही, खुली किताब बन गई, सबको नज़र आ रही है। अब इसको आपने लेकर आगे बढ़ाना है, चलाना है। आप चलाते रहेंगे, ये बढ़ती रहेगी, उलमा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, हाफिज़ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। अगर दावत इस्लामी मेरे बात पीछे हटी ना, तो ये सारे दीगर काम जो है ना, इन पर भी इफ़ेक्ट ख़तरनाक आ सकता है। तो इसलिए बस आपने सुकून का सांस लेना नहीं है आखिर तक, ये नहीं समझना कि अब बहुत काम हो गया। अरे भाई भी तो काम शुरू भी नहीं हुआ, बस जहन में ये रखना है। काम करते रहेंगे। इज्तिमा मेन है, इज्तिमा में आप आएंगे, लोगों को लाएंगे ना, इस्लामी भाइयों को, तो इस तरह उनकी जहन साजी होगी, इनका जहन बनेगा, दीन का जज्बा, दर्द पैदा होगा। और इज्तिमा के ज़रिए हमको बेशुमार मुबल्लिगीन मिले हैं। ये जैसे जो हाजी शाहिद, ये भी इज्तिमा की ही मतलब वो प्रोडक्शन है। ये इनके भाई सबसे पहले मेरे बयान में आए थे जब हम गए थे, ये बलूचिस्तान के शुरू का हिस्सा है, हब नहीं, वो जहन से निकल गया मेरे। तो वहाँ ये बयान में मेरा दोपहर को जोर के बाद बयान था, हब चौकी में था, नहीं शायद और जगह था, किसी मिल या कोई थी, उसकी मस्जिद थी। जोहर की नमाज में इनके वहाँ जो लोग काम करते हैं उनको जमा किया गया होगा। तो मैं वहाँ, मेरा बहरहाल या हब चौकी ही होगी, तो मैंने वहाँ बयान किया। और ये तो बाद में इन्होंने आके बताया कि जब आपने कहा ना कि 11 जुमेरात, पहले बोलता था 11वीं शरीफ की 11 जुमेरात हाथ उठाओ, आओगे, तो बोला मैंने हाथ उठा दिया। तो गुलजार हबीब के लिए एक ही थी अपने पास, गुलजार हबीब, तो ये आ गए गुलजार हबीब में। तो बोला मैं जब यहाँ आया, ये खुद ही बता रहे थे, यासिर, हाजी यासिर अब केप टाउन में माशाल्लाह वहाँ के जिम्मेदार हैं। तो इन्होंने मतलब इन्हें बोला कि यहाँ आ गया ना पहली जुमेरात, तो मेरा दिल से पूरा हाथ उठ गया, अब तो उम्र भर छोड़ना नहीं है दावत इस्लामी को। तो यूँ माशाल्लाह फिर हाजी शाहिद, हाजी माजिद मरहूम, हाजी ताहिर, वो भी मतलब जॉन्सबर्ग में दावत इस्लामी के काफ़िलों के वो बहुत दीवाने हैं माशाल्लाह, काफ़िले चला रहे हैं। और हाजी साजिद को क्या नाम दिया था? नासिर, हाजी नासिर। तो ये सब माहौल में आ गए सारे माशाअल्लाह। दीन दावत इस्लामी का जिनको जितना अल्लाह पाक ने तौफीक दी, काम किया, कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तो ये सब इज्तिमा की वो पैदावार हैं। ये सारे आज निगरान पाक हैं हमारे, ये इज्तिमा में आए थे ये लोग। तो और ये यूँ अल्लाह की रहमत से आज तक हमारे साथ चल रहे हैं। ऐसे तो न जाने कितने आपको मिलेंगे, एक से एक हीरे मिलेंगे चमकदार, कि जो सबसे पहले दावत इस्लामी के इज्तिमा में आए होंगे और इज्तिमा से इनकी समझ में आया। हाजी मुश्ताक ये भी इज्तिमा में आए थे, सबसे पहले इज्तिमा में आए और ये तो जा रहे थे इज्तिमा में, जैसे जलसा ख़त्म होता है वो लोग मुंतशिर होते हैं,
तो ये मुंतशिर हो गया। तो इसमें एक माशाअल्लाह एक इस्लामी भाई ने इनसे बड़ी अच्छी तरह मुलाकात की, तो ये चौंके, ये तो ऐसा लगता है जैसे मुझे पुराने जानते हैं। खैर, तो इनको मतलब यूँ लगा हाजी मुश्ताक को कि यहाँ तो आना चाहिए, बड़े अच्छे लोग हैं, तो यूँ दोबारा आने लगे। और हाजी मुश्ताक माशाअल्लाह हमारे है ना, एक वक्त आया कि मरकज़ी मदनी शुरा के पहले निगरान ये बन गए इन मानों कर, ठीक है ना। तो ये इज्तिमा की बरकत से ये मिले थे हमको हाजी मुश्ताक भी। और भी याद करने जाएंगे तो शायद कई हो सकता है निकलें कि जो इज्तिमा में आकर दावत इस्लामी के मुबल्लिग बने, ज़िम्मेदार बने और माशाअल्लाह इन्होंने खूब तरक्कियाँ की। तो इसलिए आप भी इज्तिमा नहीं छोड़ें, इसका नागा ना किया करें। मैं नागा नहीं करता था, मैं सही बोलता हूँ। हाँ, कभी फिर पंजाब के दौरे, सिंध के दौरे शुरू हुए तो फिर वो उसमें छुट्टियाँ होती थी, तो मैं या मदीना शरीफ की हाज़िरी से मुशर्रफ होता था तो उसकी छुट्टियाँ होती थी। लेकिन यहाँ घर पे रहते हुए मैं छुट्टी नहीं करता था, मैं इज्तिमा में अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी देता था। बयान भी आमतौर पे मेरा ही होता था, दुआ भी मेरी होती थी कि उस वक्त अभी इतनी तैयार नहीं हुई। आहिस्ता आहिस्ता माशाअल्लाह मुबल्लिगीन हमारे तैयार होने लगे। कुछ इक्का दुक्का पहले से भी थे जो पुराने मतलब तरकीब, लेकिन ज़ाहिर है कि वो असली जो तरकीब थी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब बहुत मुबल्लिग बन गए और अल्लाह की रहमत से अब मक्का मदीना हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी अप्रैल 2026 को बतौर माह इज्तिमा मना रही है। तमाम आशिकान रसूल और मेरी मदनी बेटियां, इस्लामी बहनें ये भी नोट कर रहे हैं, इनका भी ये भी शामिल हैं इसमें, ये अपने इज्तिमात में। तो अब ये कि जो नहीं आते, छुट्टियां कर गए, सुस्त पड़ गए, इनको मना कर एक एक पर इनफरादी कोशिश करके इज्तिमा के लिए तैयार करना है। और दीगर जो इस्लामी भाई कभी नहीं आते उनको भी लाना है। अब ये कि सब के सब इस्लामी भाई मुबल्लिगीन, मुअल्लिमीन, मुदर्रिसीन ये सब के सब एक्टिव हो जाएं कि हफ्तावार इज्तिमा, क्योंकि कितने मुदर्रिसीन मिलेंगे, मदनी इस्लामी भाई मिलेंगे जिन्होंने दर्स निज़ामी की, वो आए इज्तिमा के ज़रिए जामिअतुल मदीना में होंगे। तो इस तरह सब मिलके दावत इस्लामी के इस 1426 के माह अप्रैल के माह इज्तिमा को भरपूर तरीके पर बस उठा लें, इसको एकदम उठा लें और हमारी मस्जिदें, मराकिज़ सब भर जाएं हफ्तावार इज्तिमा से। तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदे होंगे इससे और बेशुमार नमाजी बढ़ जाएंगे इंशाअल्लाह। और सुन्नतों की पाबंदियों की धूम मच जाएगी और हर तरफ सुन्नतों की बहारें आती रहेंगी इंशाअल्लाह। या अल्लाह पाक जो माह अप्रैल 2026 को बतौर माह इज्तिमा मनाए, चाहे वो खुद आए, दूसरों को लाए, इस्लामी बहनें दूसरियों को लाएं, खुद भी आएँ, और जो गाड़ियां भर के, जो काफिले बनाकर, जो जिस तरह भी आते हैं, जो इसमें जिस तरह भी हिस्सा लें, ए अल्लाह पाक इससे पहले उनको मौत ना देना जब तक ये तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा ना देख लें। आमीन। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोजादार के मुंह की बू अल्लाह पाक के नजदीक मुश्क से ज्यादा पाकीज़ा है। या अल्लाह पाक अहले सुन्नत को बख्श दे। या अल्लाह पाक अमीरे अहले सुन्नत को बख्श दे, आमीन। या अल्लाह पाक अमीरे अहले सुन्नत को बख्श दे, आमीन। जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता उससे 1 मील दूर चला जाता है, उसके झूठ की बदबू की वजह से। अज्जल अज्जल या रमजान, जल्दी जल्दी आ रमजान। इलाही फज़ल है तेरा, खुदाए आला हज़रत हूँ, करम है आपका का, करम है आपका का, खुदाए आला हज़रत हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक सारे बच्चियों को बामजालिम दीन मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, जब तक जिए बार बार माँ बाप और ख़ानदान वाले समेत हज करें, मीठा मीठा मदीना देखें।
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि मस्जिद के स्पीकर से बाद औक़ात ऐसे ऐलानात होते हैं जिसमें अगर कोई सब्ज़ी वाला है तो वो भी मस्जिद का स्पीकर इस्तेमाल करता है कई जगहों पे। तो दूसरा, अगर किसी की कोई चीज़ गुम हो जाए जैसे बकरी वगैरह या कोई और चीज़ गुम हो जाए तो वो भी मस्जिद का स्पीकर ऑन करके उसमें ऐलानात वगैरह करते हैं। और उसके अलावा बाद जगह ये भी देखा गया है कि ये कुरान पाक वगैरह जो आते हैं ना मस्जिदों में, कुछ जिलत करने वाले वो आ जाते हैं, वो इस तरह करते हैं कि 2-3 बंदे होते हैं मस्जिद का कुरान पाक निकाल के उन्होंने ना जिलत करना शुरू कर देते हैं। और उसके साथ ही एक बंदा उनके स्पीकर पे ऐलान करना शुरू कर देता है कि हम मस्जिद में आए हुए हैं, तो इसमें इतने मस्जिद के कुरान पाक हैं जो शहीद हुए हैं, तो हम उनको जो है ना मरम्मत वगैरह कर रहे हैं, उनकी जिलतें वगैरह और ये काम करते हैं वो बैठ के। और एक बंदा उनका लगातार जो ऐलानात वगैरह करता रहता है और ऊपर से जो है ना उनको कोई आता है, कोई 500 देता है, कोई 1000 देता है, इस तरह करके वो उजरत वगैरह अपनी मांगते रहते हैं स्पीकर पे बैठ के। तो इस बारे में हमारी रहनुमाई भी फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। मस्जिद में इस तरह के ऐलानात में 2 बातें काबिल तवज्जो हैं। एक तो ये है कि मस्जिद में ऐलान करना और एक है मस्जिद के स्पीकर में ऐलान करना। मस्जिद के स्पीकर में सिर्फ वही ऐलान हो सकता है कि जिसका उर्फ हो, और मस्जिद में सिर्फ वही ऐलान होगा जो नेकी की दावत पर मुश्तमिल है। तो इन 2 बातों को पेश नज़र रख कर देखें तो सब्ज़ी का ऐलान करना ये दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है कि सब्ज़ी का ऐलान किया जाए। और ये जो जिल्द बंदी करते हैं मस्जिद में बैठकर, और मस्जिद में बैठकर ख़रीदो फ़रोख्त की इजाज़त नहीं है। और अगरचे ज़ाहिर तो यही किया जाता है कि ये फ़ी सबीलिल्लाह किया जा रहा है, लेकिन जैसा कि साहिल ने बयान किया है कि ये एक बंदा लगातार वो तलब कर रहा होता है कि हम मस्जिद की जिल्द बंदी कर रहे हैं तो इस चंदा दें और मदद करें और इसकी उजरत दें, इस तरह के ऐलानात हो रहे होते। तो मस्जिद में बैठकर जिल्द बंदी करना और मुआवजे से करना तो ये जायज़ नहीं है। फिर इस तरह के ऐलानात करना जायज़ नहीं है। मस्जिद में इस तरह का ऐलान करना कि ये हकीकत में सिर्फ चंदे का ऐलान नहीं है बल्कि अपनी उजरत तलब करने का ऐलान, तो इसकी भी इजाज़त नहीं। तो मस्जिद में सिर्फ वही ऐलान किए जा सकते हैं जो नेकी की दावत पर मुश्तमिल हों, दीनी ऐलानात हों। और मस्जिद के स्पीकर पर वो ऐलान हो सकते हैं। अगर मस्जिद का स्पीकर मस्जिद में रखा है तो मना की 2 वजह हो जाएंगी कि एक तो उर्फ नहीं है और दूसरा मस्जिद में ऐसे ऐलानात हो रहे हैं। मस्जिद का माइक और स्पीकर जो है वो उर्फ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है, ये भी जायज़ नहीं है। और मस्जिद में ऐलान हो रहा है, ये भी दुरुस्त नहीं है, ये भी जायज़ नहीं, तो इसकी इजाज़त नहीं। उर्फ रूटीन, उर्फ माने मामूल, रूटीन के हट कर, मतलब तो बाद जगह जैसे जनाजों के ऐलान होते हैं मस्जिदों में माइक पर, तो ये चूँकि इसकी वहाँ एक उर्फ बना हुआ होता है तो ये जायज़। जब बच्चे गुम हो जाते हैं इसका ऐलान भी किया जाता है। बच्चे गुम हो जाएं तो उर्फ तो है इसका ऐलान करने का कि बच्चों के गुम होने का ऐलान किया जा सकता है। सब्ज़ी वाले ऐलान अल्लाह रहम फरमाए, मैं आपको क्या जो है वो अर्ज़ करूँ, आलू का, प्याज का, मतलब जो कुछ सब्ज़ी ठेले पे है उसका वो पूरा कीमत बताते हैं उसकी, और फिर अपनी तौर पर क्या समझते हैं कि हम जो है कुछ पैसे चले भाई हमने ऐलान किया तो मस्जिद के चंदे में भी जो है वो डाल देंगे, तो ये भी होता है। उजरत पर भी ऐलान नहीं इस तरह किया जा सकता कि वक्फ़ की चीज़ उजरत के तौर पर इस्तेमाल की जाए। अगर खिलाफ उर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उजरत के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते कि अपने तौर पर कुछ पैसे डाल दिए और ये समझा कि चलो ऐलान का एवज़ हो गया, तो ये भी जायज़ नहीं। अल्लाह अकबर। मुख्तसर ये कि ये जो जिस तरह के ऐलानात का सवालात में कहा गया ना, ये सब्ज़ी बनाने के, सब्ज़ी बेचने के लिए कि आलू प्याज आ गए हैं तो मिर्चें बहुत अच्छी आई हैं तो ये दाम है, और फिर कुछ चंदा भले डाल भी दें लेकिन ये तरीका भी जायज़ नहीं है। इसी तरह कुरान करीम की जिल्द बंदी, मस्जिद में इसकी बाइंडिंग करने के लिए बैठ जाना मस्जिद के कुरान शरीफ की, और फिर साथ में पैसे भी मांगना कि दे दो हमको इसका ख़र्चा और वगैरह, ये सब
नाजायज़ सूरतें हैं, तो इनसे मस्जिद इन कामों के लिए नहीं बनी, मस्जिद इबादत के लिए बनी है, ये काम न किए जाए। ये रोकेगा कौन? जिसको खौफ खुदा होगा और इल्म होगा जिसके पास। इसको भेज दो हाजी सलमान भट्ट को, ये रोक देंगे इंशाअल्लाह। इंतज़ामिया की जिम्मेदारी अंडरस्टूड है। इंतज़ामिया वो हो ना कि जो मसाइल जानती हो ना, तो अब इंतज़ामिया तो ऐसी होती है, बस वक्फ के मसले भी इनको पता होने चाहिए। तो लेकिन खैर सब ऐसे नहीं होते, हर जगह नहीं होता, ये कहीं कहीं गांव गोठों में होता होगा, शहर में मुश्किल है ऐसा हो, लोग करने नहीं देंगे ऐसा। सब्जियां बेचने वाले को मतलब वो ये ऐलान करे तो ये बिल्कुल ये नई नई बातें हैं ये मेरे लिए, तो ऐसा भी हो रहा है, ये कहीं सा होता होगा, हमने ज़िंदगी में नहीं देखा। हुजूर जानवर के गुम होने का ऐलान भी होता है, ये तो आप मुफ्ती साहब किबला तो बच्चों के गुम होने का फरमाया से ना, जानवर के गुम होने का ऐलान भी जैसा ही है। आते हैं दारुफ्ता में इस तरह के सवालत आते हैं, गाय गुम हो गई, भैंस गुम हो गई, बकरी गुम हो गई, तो ये गाँव गोठों के अंदर इस तरह के ऐलानात होते हैं। शहर में तो इस तरह बहुत कम है, वो भी तो बहुत ओल्ड सिटी जो इस तरह के होते हैं एरियाज, उनमें कहीं हो तो हो, वरना नहीं होते इस तरह। तो इसका मतलब कहीं गाय भैंस के ऐलान का उर्फ जारी हो, नहीं कह रहे, जब तक उर्फ बिल्कुल वाज़े ना हो जाए उस वक्त तक मना ही किया जाएगा। और गाय भैंस सुनती थोड़ी कि सुन के ऐलान दौड़ती हुई सर झुकाकर गिरफ्तारी पेश कर देगी। वैसे भी गुमशुदा चीज मस्जिद में तलाश करने की अलग से मुमानत। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हदीस पाक में इसकी मुमानत मौजूद है। बल्कि यहाँ तक है कि अगर कोई मस्जिद में अपनी गुमी हुई चीज़ ढूंढता उसको कह दो कि अल्लाह तुझे ना मिला है, ना अल्लाह करे तुझे ना मिले। ये खैर आप बोले लड़ाई हो सकती है, हदीस पाक में ये। तो जो पावरफुल आदमी हो, जो कर सकता हो ऐसा कि जिससे लोग लड़ेंगे नहीं, उसका एक रोब हो या मतलब फितने का खौफ ना हो, तो वो तो उसको करना होगा कि वो करे, मतलब मना करे कि मस्जिद इन कामों के लिए, अपनी गुमी हुई चीज़ें ढूंढने के लिए नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फेसबुक पेज पर हाफिज़ हसीब इकबाल सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मस्जिद में चंदा दिया जाता है तो उसमें जब झोली फैलाई जाती है तो उसमें बाज़ लोग बड़ा नोट डाल देते हैं, 1000 का नोट डाल देते हैं, 500 का नोट, तो उसमें बकाया पैसे ले रहे होते हैं, इस तरह करना कैसा है? इसमें हरज नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इमरान अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह पाक आपको सही तंदुरुस्ती दे, सलामती अता फरमाए। माशाअल्लाह बात मुख्तसर हो और माना भी मुकम्मल हो, ये अल्लाह ने आपको ये नवाजा है, ये एक सलाहियत है। जैसे भी माह इज्तिमा के तौर पर आपने माशाअल्लाह जो मदनी पुल अता फरमा, मगर हुजूर ये एक सलाहियत है, ये एक फ़न है कि बात मुख्तसर हो मगर मुकम्मल भी हो और माना भी पूरे रखते हों और आवाम के लिए भी आसानी हो। ये सलाहियत कुदरती है या कोशिश से या तजर्बा से आती है? ये इरशाद फरमाइए। मुहावरा एक खैरुल कलाम मा कल्ला वदल्ला, कि बेहतर कलाम, बेहतर बात वो है जो कलील और पुरदलील हो, मुख्तसर और दलील के साथ हो। अब ये कि मौके की मुनासबत से होता है। अब किसी ने मुफ्ती साहब से सवाल किया और मुफ्ती साहब ने वही कलील ने पुरदलील वाला काम किया तो उसके सर से गुजर जाएगा। तो अब मुफ्ती साहब के लिए ज़रूरी है कि इसको उन अल्फाज में बताए जिससे इसकी समझ में आए। तो ये है कि दकीक और सकील अल्फाज अगर और जुज़ियात और अरबी इस्तिलाहात तो बयान की तो बेचारा उसको क्या पल्ले पड़ेगा, बड़े बड़ों को समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये मुफ्ती के लिए ये फ़न होना ज़रूरी है कि ये सवाल समझे, सवाल की सूरतें उसकी समझ में आए कि ये सूरतें बनती हैं, और फिर उसकी लैंग्वेज में हत्तल इम्कान इसके लिए मुमकिन हो, जहाँ तक उसकी अपनी ज़बान में जिन अल्फाज में वो समझ सकता है उन अल्फाज में इसको समझाए, वरना तो फ़ायदा नहीं है। वो जवाब तो मिल जाएगा उसको, वो याद खाक रहेगा इसको। यही मुक़र्रिर के लिए, यही वाइज़ीन के लिए, ख़तीबों के लिए मेरा मदनी फूल है। अगर मकसूद अपने फ़न जौहर दिखाना है, समझे, फ़न खिताबत के जौहर दिखाना है तो ठीक है,
आप वो मुकफ़ा मुसज्जा कलाम किए जाएं, लोग अशश कर उठेंगे, याद कुछ भी नहीं रहेगा इनको, नारे भी लगाएंगे, ये नहीं पता होगा नारे लगाए किस बात पर हैं, समझे। तो इसलिए वो आसान लहजे में जिसके यानी कि दावत इस्लामी की कामयाबी का राज कि इनको ये मिला कि मतलब इनको समझ पड़ी कि ये होता क्या है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमारे मुबल्लिगीन का अंदाज़ जो है ना, इसने लोगों को जमा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए सबको मतलब हर एक के साथ वो उसकी यानी कि समझ के मुताबिक अगर कलाम हो ना, तो मक्का मदीना कल्लिमिन नासा अला क़दर उक़ूलिहिम, लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक बात करो। तो ये है। तो अब ये सब तकल्लुफ़ से आता है, जो मतलब जैसे अहले इल्म है तो उनकी पढ़ाई का अंदाज़ यही है, उन्होंने पढ़ा यही है। तो अब ये कैसे मतलब है कि इस अवाम को हर बात समझाएं, ये मुश्किल होता है, हर बात नहीं समझाई जाती और इस्तिलाहात तब्दील भी नहीं की जा सकती। तो अवाम को भी चाहिए कि वो भी इल्म हासिल करे, अवाम बिल्कुल कोरा कोरा ना रहे, अपने आप को मतलब है कि इस कदर तो तैयार करे कि एक मसला को समझाए तो इसकी समझ में तो आ सके। बाहर शरीयत में लिखा है कि कोशिश की गई है कि आसान अंदाज में समझाया जाए, लेकिन ये कि उलमा की मोहताजी फिर भी रहेगी कि उनसे जो बात ना समझ में समझ ना हो। इस मफहूम का इन्होंने पेश लफ्ज़ में कुछ इस तरह का लिखा है। अब बाहर शरीयत और आसान उर्दू में लिखी गई है, समझे। तो ये उस वक्त होगा अब आलिम से जाके समझे, तो इसमें भी मतलब है कि फ़ायदा बहुत होता है समझने में। अगरचे बाद अल्फाज इनके समझ में ना आए तो जब हमने डायरेक्ट 1 to 1 बात करेंगे ना, तो हज़रत इसका मतलब क्या है, ये आपने जो फरमाया इसके मीनिंग क्या है, तो ये फिर आपको मज़ीद ये समझाएंगे। तो इस तरह मतलब ये कि मसला समझना आसान होगा। फतवा आ गया लिखा हुआ, अब ये ज़ाहिर है कि हर चीज़ आपको एक तहरीर में समझा नहीं सकेंगे, समझ में नहीं आया तो अब किसी करीबी आलिम से आप रुजू करें, उनको पढ़ाएं कि हज़रत ये मुझे समझा दें ये क्या है। मैं मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर था, तो एक और आलिम साहब थे आलिम साहब, और वो उन्होंने एक निकाली तहरीर जो इनको कोई खिलाफतनामा मिला था, अरबी में लिखा हुआ था। हालांकि अरबी पढ़े हुए थे, लेकिन हर दरसे निज़ामी किया हुआ वो यूँ फटाफट अरबी बोले अरबी समझे, उस दिल्ली दूरस्त, ये थोड़ा मुश्किल काम है, तजर्बात की बात है। मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम थे, तो उन्होंने बोला कि हज़रत कि मुझे समझना है आपसे। तो उन्होंने पढ़कर मतलब इनको, ये मेरे सामने की बात कर रहा हूँ, इन्होंने पढ़कर इनको मतलब मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने समझाया कि इसमें ये यूँ 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 तो यूँ। तो खिलाफत के लिए या पीर के लिए अरबी जानना शर्त भी नहीं है, ना आलिम के लिए अरबी जानना शर्त है कि यूँ तो मतलब अगर अरबी काफ़ी होती है तो अरबी जो होते हैं, अरब दुनिया के जो देहाती फसी अरबी बोल रहे होते हैं, मसला एक नहीं पता होता। अरबी ऐसे बोलेंगे कि हमारा अच्छा खासा आलिम उनके सामने टॉकिंग में टिक नहीं सकेगा, कि टॉकिंग जो है ना, ये गुफ्तगू कलाम ये प्रैक्टिस से आती है, खाली पढ़ लिया वो अलग बात है। फिर ये कि हम जो यानी कि जो हमारे ये उलमा पढ़ते हैं जैसे अरबी, वो अपनी जगह पर होती है, उसके जो अल्फाज होते हैं अपनी जगह पर होते हैं, और आम आदमी जो टॉकिंग करते हैं ना अरबी में, उनके अल्फाज में फ़र्क होता है। तो ग्रामर के इनके पास ग्रामर वाली अरबी होती है उलमा हज़रात के पास, जो दुरुस्त तरीन है, लेकिन वो जो अवाम जो बात कर रही होती है वो ग्रामर में नहीं समझते, वो जो अपनी इनके अंदाज में जो उनमें भी अहले इल्म होगा वो करेगा वो लुगत वाली अरबी। लेकिन जनरल वहाँ पब्लिक देखिए ना, ये वो हुरूफ बदल देंगे, तलफ़ुज़ बदल देंगे, वो क्या बोलते हैं। अब जैसे सलाजा ये फ्रिज वगैरह को बोलते हैं सलाजा, इसको बोले तलाजा, सलासा 3, तलाता। मैं बगदाद शरीफ का है, वो मेरे को यादगार वाक़या है कि एक मिस्री था, अरबी बोलता था, उर्दू नहीं बोलता था, तो वो आला गौसबा के शहजाद के मज़ारात का मैं पूछ रहा था, तो बोले हाज़ा अब्दुल गब्बार, तो मैं बोलता ला हाज़ा अब्दुल जब्बार, तो ला
अब्दुल गब्बार, अब इसे कैसे पहुंचूं मैं कि वो जिम को गाफ पड़ रहा था, जाए तो जाए कहाँ बगदाद। अब मिस्री गाफ पढ़ते तो अब बोल अरबी रहा था, तो अब अपने अपने अंदाज की अपने अपने इलाकों की ज़बानी से, उर्दू में भी 1000 इसके भी मतलब अंदाज है बोलने के। तो बहरहाल सीखने से, तजर्बात से और वक्त के साथ साथ वो चीज़ मतलब आ जाती है। जैसे वो सवाल हुआ था, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जो नई किताब है मकतूबात अमीर अहले सुन्नत, बहुत ही कमाल किताब है। जो मुतलाशिए हक हैं उनके लिए इस किताब में बहुत कुछ मौजूद है। जो लोग दीन की तरफ आना चाहते हैं, जो अच्छी बात पढ़ना चाहते हैं, जो सुन्नत पर अमल करना चाहते हैं, वो ये किताब ज़रूर पढ़ें। यहाँ उनको बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिलेगी, जिनसे उनकी न सिर्फ दुनिया संभलेगी बल्कि आखिरत भी संभलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई का। ये किताब तो माशाअल्लाह कई साईं भाइयों ने पूरी पढ़ भी ली है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। जिन्होंने नहीं पढ़ी हासिल करें, मकतबतुल मदीना से इसको पढ़ें। तो ये मेरा बहुत पुराना अंदाज आपके सामने आएगा इंशाअल्लाह। और बरसों की मेहनत, मेरे दावत इस्लामी के पहले से भी मकतूबात जो थे शायद वो भी शामिल किए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मकतूबात माने लेटर्स, मकतूब माने लेटर, ख़त। SMS के ज़रिए सवाल है कि किसी का नाम गफ़्फ़ार या मोहम्मद गफ़्फ़ार रख सकते हैं? गफ़्फ़ार, या जिस तरह रहमान नाम रखना नाजायज़ है, इसी तरह ये भी नाजायज़ है? ये भी मना है। गफ़्फ़ार नाम रखना है ना, मना है। अब्दुल गफ़्फ़ार रखेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं पेनाफ्लेक्स की प्रिंटिंग का काम करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम होती हैं, या कोई दुरूद शरीफ होता है, या कुरान की कोई आयत होती हैं, इसको मिटाना और इसको फिर या शहीद उराग में डालें हम, या फिर इसको वैस कर सकते हैं। बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। यानी जो मतलब इस्तेमाल अब उसको नहीं करना चाहते, और अब वो मतलब कोई लेगा भी नहीं, इस तरह की तो ठंडा तो करते हैं औराक जो होते हैं कुरान करीम के, और जो अब इस्तेमाल हम उसको नहीं कर पा रहे, वो कोई भी नहीं कर पा रहा। अब उसके लिए अल्फाज मिल नहीं रहे मुझे। आम होते तो मैं कुछ और बोल देता अल्फाज, लेकिन यहाँ कुरान करीम मिटाने की भी बात कर रहे हैं ना, असल में मिटाने का तो ये अब जैसे उसके ऊपर कलर फेर दिया, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अब बताइए मसला। ज़रूरतन इस तरह महफ़ की जा सकती है तहरीर किसी किस्म की भी, बेअदबी की नीयत ना हो, ज़रूरत हो, हाजत हो, उसको महफ़ करके दोबारा उसको इस्तेमाल किया जाए उस चीज़ को जिसके ऊपर तहरीर थी। बस इस चंद बातों का इसमें ख्याल रखना है कि उसका जो धोवन है, जो स्याही गिरी है, तो वो किसी अच्छी पाकीज़ा जगह पे डाली जाए, वो इस तरह बहा ना दी जाए। इसी तरह उसके ज़र्रात वग़ैरह ज़मीन पर ना गिरें, इस तरह ना गिरें कि पाँव में आएँ और उसकी बेअदबी हो, इसका ख्याल रखा जाए। वरना लिखाई को इस तरह महफ़ किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। मैं याद कर रहा था वाक़या कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी कुफ़ार से जो मुआहदा हो रहा था, उन्होंने एतराज़ किया था। तो मौला अली ने मना किया, मैं नहीं किस पे कलम कैसे फेरूँ मैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथ से वो तरकीब फरमाई। अच्छा, अब ये जो पाकीज़ा जगह पर, पाक जगह पर अदब की जगह डाला जाए, तो हमारे यहाँ अदब की जगह समझते हैं लोग गमले में डाल देते हैं, है ना। गमले में पता है क्या क्या होता है? ये जो गमले में जो पौधा होता है ना, आमतौर पे हमारे यहाँ इसमें गोबर डाला जाता है। ये पाक जगह नहीं है। हाँ, अगर कोई वाकई ऐसा गमला है कि जिसमें आर्टिफिशियल खाद, क्यों आर्टिफिशियल खाद का तो मुझे फार्मूला पता नहीं है कि इसमें ये गंदी चीज़ें हैं या नहीं है, तो बहरहाल ये कि गमले में ना डाला जाए। छत आमतौर पर मुनासिब होती है, या दीवारों पर इसको छिड़क दिया जाए, या जो
रोडों पे दरख्त खड़े होते हैं, इनमें ये गंदगियाँ नहीं होती। जो तनावर दरख्त खड़े होते हैं इनमें कोई कुछ नहीं डालता, ये खुद ही अपनी ग़िज़ा जड़ों से ले रहे होते हैं, तो वहाँ डाला जाए, उसके तने पर डाल दिया। छत सबसे आसान है शायद, ये डाल दिया खुद ही सूख जाएगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर व मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन और फैज़ान मदीना कराची के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला पढ़ने और सुनने के लिए अता किया जाता है। आइए इस रिसाले के बारे में सुनते हैं। दुआए अत्तार। दुआ कबूल होने का एक अदब। अगर अगले को पता न चले इस तरह पीछे से उसके लिए दुआ की जाए तो वो कबूल होती है। या अल्लाह पाक, जो कोई 20 सफ़हात का रिसाला लंबी उम्र पाने का नुस्खा पढ़ या सुन ले, उसे ईमान और आफियत वाली और नेकियों भरी लंबी उम्र अता फरमा, और माँ बाप और खानदान समेत उसे बेहिसाब बख्श दे। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाई खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। लंबी उम्र पाने का नुस्खा। उर्दू ज़बान में 20 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 25 रुपए हदिया पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 7 ज़बानों में ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, सिंधी, पश्तो, बंगला और रोमन उर्दू शामिल हैं। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहूमीन के ईसाल सवाब की नीयत से रसाइल खरीद कर तकसीम कीजिए, या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313113928 पर राब्ता कीजिए। खुशखबरी, इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते को मदनी मुज़ाकरे में इंशाल्लाह इफ्तिताह बुखारी का सिलसिला भी होगा। 4 अप्रैल 2026 को होने वाला मदनी मुज़ाकरे में इंशाअल्लाह इफ्तिताह बुखारी का भी सिलसिला होगा इंशाअल्लाह। अमीर सर क्या फरमाते हैं? हाँ, ये 4 अप्रैल का मुझे भी कहा गया है इंशाअल्लाह, यानी तय हुआ है 4 अप्रैल का। वो बोलता रिसाला, ये जो ऐलान करते हैं ना, ये रिसाला पढ़िए, तो इसमें बोलते रिसाले का भी आप डाल दिया करें, क्योंकि कई ऐसे होते हैं जो उर्दू समझते हैं, पढ़ नहीं सकते। बाहर मुल्कों में तो ऐसे बकसरत होंगे, तो इसलिए वो बोलता रिसाला किस तरह सुनना है वो भी यानी कि ऐलान में शामिल हो इंशाअल्लाह। इसको नोट कर लीजिएगा इंशाअल्लाह। बोलता रिसाला जारी हो चुका है, अभी भी बता देंगे किस तरह ये आम लोग सुने इसको। इस हफ्ते का जो बोलता रिसाला है वो दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net, वहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं। इसी तरह मदनी चैनल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, अब वहाँ से भी ये बोलता रिसाला, ये मुकम्मल इस रिसाले की ऑडियो होती है, जिसमें पूरा रिसाला ऑडियो की सूरत में होता है, आप वहाँ से भी इसको हासिल कर सकते हैं माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी अलग से एप्लीकेशन भी है। हमारी IT मजलिस ने इसकी एक एप्लीकेशन बनाई है, रीड एंड लिसन। तो उस एप्लीकेशन के ज़रिए तो अब तक भी जितने रिसाले हैं वो पढ़ भी सकते हैं और इसको सुन भी सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह इस रिसाले को पढ़ने सुनने के हवाले से जो दुआएं बयान हुई तो वो दुआ भी हम उसमें सुन सकते हैं। तो पूरा वो बाकायदा इसकी एप्लीकेशन है और ये भी अपने मोबाइल में रखी जा सकती है। सोशल मीडिया पर भी ये जी बिल्कुल वायरल होता है, बिल्कुल वायरल। जिसके पास पहुँचे ना तो कोशिश करेंगे ये आगे बढ़ा दिया करें, सवाब का काम है। सवाब की नीयत करेंगे तो सवाब भी मिलेगा इंशाअल्लाह। आइंदा हफ्ते को इंशाअल्लाह 4 अप्रैल 2026 बरोज़ हफ्ता सैटरडे मदनी मुज़ाकरे के दौरान
इंशाअल्लाह करीम इफ्तिताह बुखारी का सिलसिला होगा, यानी तलबा किराम जो दौरे हदीस में पहुँचे ना, तो इनको मतलब है कि बुखारी शरीफ की पहली हदीस पढ़ के सुनाई जाएगी और इसके ज़िम्न में कुछ तो कुछ मदनी फूल अर्ज़ किए जाएंगे इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मकतूबात अमीर अहले सुन्नत के हवाले से हमारे रुकन शूरा हाजी असद मदनी के बड़े प्यारे तासुरात हैं, आइए वो भी सुनते हैं। मेरे हाथ में किताब है मकतूबात अमीर अहले सुन्नत, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस किताब को मैंने इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, यानी शुरू से आखिर तक तकरीबन पढ़ने की सआदत हासिल की है। इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो अवामी राबते का एक ज़बरदस्त अंदाज आपको देखने को मिलेगा। कोई बीमार हुआ, उसकी इयादत किस अंदाज में आपने फरमाई, किसी की शादी हुई तो शादी खाना आबादी के मौका पर किस अंदाज में अमीर अहले सुन्नत उनकी खुशियों में उनके साथ शरीक हुए। को आफत ज़दा है, को मुसीबत ज़दा है, परेशान हाल है, अमीर अहले सुन्नत ने किस अंदाज में गम खारी और खैर खाही का सिलसिला फरमाया। जी हाँ, अमीर अहले सुन्नत के ख़त की बरकत से खुदकुशी का इरादा करने वाला खुदकुशी के गुनाह कबीरा से बाज आ गया। अमीर अहले सुन्नत अल्लाह ताला जल्ल जलालहू की अता करदा एक अज़ीम नेमत है। इन मकतूबात शरीफ में आपको वो प्यारे प्यारे ख़त भी मिलेंगे कि जिन खतूत में आप बगदाद शरीफ, मक्का शरीफ, मदीना तैयबा ज़ादहुमुल्लाहु शरफ़न व तअज़ीमा इन मकामात पर मौजूद हैं और अपने मोहब्बत करने वालों को वहाँ से ख़त के ज़रिए मदीना तैयबा की सैर करवा रहे हैं। कभी मक्का मुकरमा के नज़ारे तहरीर की सूरत में अपने साथ उनको शरीक करके दिखाए जा रहे हैं और आलम तसव्वुरात में बगदाद की गलियों में अपने साथ वालों को घुमाने का सिलसिला जारी है। यकीन मानिए, खौफ खुदा, मोहब्बत मुस्तफ़ा अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम और इसके अलावा रहनुमाई के बहुत सारे अनमोल मोती आप इस किताब में पाएंगे। अल्लाह ताला अमीर अहले सुन्नत को उम्र दराज़ी बिल खैर अता फरमाए। किताब तहरीर ये बाकी रहती है, बंदे की ज़िंदगी गुजरते गुजरते गुजर जाएगी, लेकिन लिखा हुआ बाकी रहता है। इस किताब में आपको वो ख़त भी पढ़ने को मिलेंगे जो अमीर अहले सुन्नत ने आज से तकरीबन निस्फ सदी पहले 45 साल 40 साल पहले लिखे। आज भी 45 साल पहले के जज्बात आप इस किताब के ज़रिए पढ़ सकेंगे। तो आइए पहली फुर्सत में मकतूबात अमीर अहले सुन्नत इस किताब को हासिल करें, हर घर की जीनत बने और इसको पढ़ पढ़ के मोहब्बत रसूल और मोहब्बत इलाही, मोहब्बत औलिया, मोहब्बत अम्बिया, मोहब्बत सुलहा इसके जाम भी पीते चले जाएं। और कई एक मकतूबात इस तरह के होंगे जिनको पढ़ने के बाद आपको अपनी ज़ात में कई एक मामलात में इस्लाह का मौका मुयस्सर आएगा। तो अब तमाम देखने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि इस किताब को कल नहीं आज, और आज नहीं अभी ख़रीद लीजिए। मुझे अपना एक वाक़या याद आया। एक ख़त मकतूब ही किसी को मैंने दिया वो लिखने के लिए, उसकी कॉपी बनाने के लिए ग़ालिबन। तो उसमें कुछ मियाँ बीवी के और कुछ मसाइल थे। तो इन्होंने मुझे बोला कि इससे तो मेरा काम बन गया, हमारे घर के झगड़े ख़त्म हो गए, तो मसला हल हो गया हमारा। ये बहुत पुराना एक चुटकुला मुझे याद आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हो सकता है वो ख़त भी इसमें होगा, तो पढ़िए ज़रूर, इंशाअल्लाह फ़ायदा उठाएंगे इससे। ख़ासकर जिन्हें मुताले का शौक़ होता है स्टडी का, तो मैं तो तमाम ज़िम्मेदारान को भी अर्ज़ करूँगा कि ये वो किताब है कि जो हमारे ऐसे शख्सियात, इमाम साहिबान, अहले इल्म जो इसका स्टडी करने का जिनका शौक़ होता है, यकीनन ये बहुत ज़बरदस्त ख़जाना है
اور اس کو ضرور ہمیں آگے پہنچانا چاہیے. 1000 روپے اس کا ہدیہ ہے، پرائز ہے، اور مکتبۃ المدینہ سے اس کو ضرور حاصل کریں، اور چاہیں تو اس کو آن کال بھی آپ بک کرا سکتے ہیں، آپ تک یہ پہنچائی جائے گی انشاءاللہ کتاب. شش عید کے حوالے سے امیر اہل سنت نے بھی فضائل ارشاد فرمائے تھے. آئیے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. دوسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد 6 دن شوال میں رکھے تو ایسا ہے جیسے دہر کا یعنی عمر بھر کے لیے روزہ رکھا. ہمیں شوال کے 6 روزے رکھنے والوں کے حوالے سے کارکردگی بھی موصول ہوئی ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. 6 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائی 46,076، 46,076. اسلامی بہنیں 27,408، 27,408. ٹوٹل نیتیں 73,484، 73,484. ماشاء اللہ. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات بھی کیے جاتے ہیں. آج جو ناظرین سے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش بتائیے. سوال نمبر 2، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو عمرے پر روانہ ہوتے وقت کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا جس پر آپ فخر کیا کرتے تھے. سوال نمبر 3، مسلمان کے جنازے کو 40 قدم لے کر چلنے والے کو کیا عظیم الشان فضیلت حاصل ہوتی ہے. ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہن اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو قرآن اندازی دکھاتے ہیں. 21 مارچ 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے زیادہ قریب کون ہوگا؟ جواب، جس نے زیادہ درود پڑھے ہوں گے. سوال نمبر 2، کسی کو ڈرانے والی نظر سے گھورنا کیسا ہے؟ جواب، ناجائز و گناہ ہے. سوال نمبر 3، 4 مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے والے کو کیا انعام ملے گا؟ جواب، اس کے پورے جسم کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: اویس اتاری راول پنڈی، محمد عفان اتاری کراچی، سخی حسین اتاری گکھڑ سٹی، محمد عامر مشتاق اتاری جھنگ، علی رضا اتاری نارووال، بنت معین الدین اتاریہ اورنگی ٹاؤن کراچی، بنت محمد اسلم اتاریہ بہاول نگر. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرعہ اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام محمد عفان اتاری کراچی. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ.